तो इस टाइम पे सील्स, यूएस सील्स आर द बेस्ट, they say, whether you say army, navy or या फिर air, they are trained in that. Do we have something similar here in India? Sorry, I beg to differ. They have lost 2 major wars in the most recent times. Vietnam War, Afghanistan, absolute failure. I was posted in Valley as in Srinagar, one of the last border units. So वहाँ पर I was posted 15 kilometers पे border था. I was the first woman officer in that composite platoon and it had its issues. Basic survivability was an issue वहाँ पे. Every second day there was an operation. You could hear what is happening. आप high alert पे हो. You cannot sleep ना, कैसे नींद आएगी आपको? नींद नहीं आती. You can hear the gunshot, you can hear everything, and especially for the fact that first place that is going to hit is you, not even the headquarters. Anything crossed you? They were dead before they could find us. Yeah. How does Kashmir people look at Indian Army? एक ही चीज को आप बार-बार गलत बोलते रहोगे ना तो गलत चीज भी सही लगने लगे. And once there is chaos, everybody benefits from it who are in power. Basic वो झिगझिगाहट आदमी में आ जाती है कि यार भाई आपके साथ भी करेंगे तो होगा. यहाँ पर VIP मूवमेंट हो जाती है तो सब बंद कर देते, तो हम तो उसी में इरिटेट हो जाते हैं. अरे यार VIP मूवमेंट हो रहा है, मतलब 15 मिनट हमको लेट हो गया. तो इमेजिन दैट मेंटालिटी ऑफ दोस पीपल हु हैव फॉरएवर बीन स्टेइंग इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. हमने रिसर्च करे थे, वी वर लुकिंग एट द बजट इंक्रीज इन द इंडियन आर्मी. हमने लास्ट ईयर देखा 9.5% इंक्रीज. आर वी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग हैपनिंग? डू यू हैव एनी इनसाइट? दादू पॉडकास्ट में जाएगा. Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. एक army veteran and 4th generation in the army. 160 kilometers ultra run. 2010 में commission हुए from OTA. I present you Lieutenant Colonel Barsha. Hi Nikhil, how are you? Ma'am, low? नहीं बिल्कुल लो नहीं, मतलब मैंने कहा कि अगर मैं अपने एनर्जी से स्टार्ट करूंगी. Yes, I want this. हाँ, so hi Nikhil, how are you? I'm good ma'am. This is मैं बहुत इस पॉडकास्ट की वेट कर रहा था कि हम इस सेंस में आए और हम बात करें, एक पोडियम में बात करें जहाँ पर वी शेयर सेम फ्रीक्वेंसी. डेफिनेटली आई फील लाइकवाइज, क्योंकि हम पहले मिले एंड यू नो ऐसा नहीं है कि आपको हर कोई अच्छा नहीं लगता, हर कोई अच्छा लगता है, बट एक एनर्जी मैच होती है, एक वाइब मैच होते हैं, एक थॉट्स मैच होते हैं. And I think you and me that day when we were talking and time just flew 4 hours, I think. Yes. 4 घंटे है ना. हम 1 घंटे का बोलकर आए थे कि we'll sit for just 1 hour and do it. We just sit for 1 hour and that is what I told my husband also. Though he was in office, but you know घर में वैसे हम ऐसे उसको plan करके आते because we have kids at home, so and वहाँ पे 4-5 घंटे हो गए. So you know I really liked that and I was looking forward to it. Yes. वेलकम. अच्छा, बिफोर मैं डीप डाइव लूँ क्वेश्चंस के अंदर, हम क्या एक्सपेक्ट करने वाले पॉडकास्ट है, मुझे ना सबसे पहले ना एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग है. हम आर्मी के बारे में सोचते हैं ना, डिफेंस के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमारा ना वॉर ही आता है और कुछ नहीं आता. ठीक है, टेल मी व्हिच इज द मोस्ट ब्रूटल रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी? ब्रूटल रेजिमेंट जिसको कोई खतरनाक है यार वो. ओके, सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई करेक्ट यू? Sorry, हाँ, please don't mind, हाँ. अरे नहीं हाँ. So did I use the word brutal wrong? No, see, brutal is not a wrong word technically. देखो, अगर उसका आप डिक्शनरी में नहीं निकालोगे तो गलत नहीं है. But when we talk about army and Indian army per se, then I think brutal should not be used because army technically is किस लिए होती है? अपने नेशन को, उसके sovereignty को डिफेंड करने के लिए होती है, to protect basic. So we are protecting our own country. So I don't think in that protection or in that entire process there is something as brutality. And अगर आप किसी भी अगर इससे पूछेंगे with respect to our citizens and everybody, I think brutal is not the term they'll use. Okay. But yes, I understand your question that आप कहना चाहते हो कि सबसे खतरनाक प्रोफेशनल और मतलब जिनको यार there are certain times जैसे कि मैं उनका नाम सुन के डर जाता हूँ. इफ दे आर डिप्लॉयड एट सर्टेन लोकेशन तो यू फील अरे दिस विल हैपन, दो ऑल डिविजन्स आर देयर, बट एक होता ना कि दिस इज समथिंग क्लासिक. सो आई मे साउंड लाइक आप बोलोगे शायद मैं डिप्लोमेटिक साउंड कर रही हूँ, शायद मैं बायस साउंड कर रही हूँ, बट देन यू नो आई कैन नॉट पिन पॉइंट इट ऑनेस्टली बिकॉज सी इट्स लाइक कि आपका एक शरीर है, आपके शरीर में आपके हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, लिवर है, किडनी. अभी will you ask if liver is important or kidney is important? देखो, Similarly, you're not no, similarly, and you know जब आप डर
लगने की बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी का कोई भी डिवीजन हो, कोई भी रेजिमेंट हो, व्हेन यू टेक दैट नेम, स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट इंडियन आर्मी डिप्लॉय हुई है, चाहे हमारे बॉर्डर एरियाज में हो, चाहे हम यूनाइटेड नेशंस के किसी पीस कीपिंग फोर्स में जा रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल एनी डिजास्टर मैनेजमेंट वी आर डूइंग, अब्लीक एनी राइट सिचुएशंस जहाँ पर इंडियन आर्मी आती है, वहाँ पे नाम ही काफ़ी है। और जब जाते हैं ना वहाँ पे, तब सिविलियन को, या फॉर दैट मैटर एनीबडी हु इज अ जनरल पब्लिक, they don't know if in case he's a Gurkha, he's a Naga, he's a Jat, he's a Bihari, he's a Bengali, नहीं मालूम ना उनको, बस क्या पता है भारतीय सेना का जवान आया है. So for me, honestly, if you ask me, there is no division, because I have served with, I think, almost every regiment you can talk about. I've served with Gurkhas, I've served with Jat, आप गढ़वाल राइफल्स बोल लीजिए, राजपूत बोल लीजिए, सिख बोल लीजिए, सिखलाई बोल लीजिए, and each one of them are good. मतलब सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, सबके अपने अपने वीकनेस तो किसी की है ही नहीं, बट एक वो अलग एक होता है ना, कैरेक्टर होता है सबका, जिसके ऊपर कहानियां बनती हैं फौज में, वो है. सो if you ask me, as an individual and as an officer who served and now retired, none of it. मतलब I cannot get it to compare, because जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर मैं बोल दूं मेरी आँख चली जाए, तो it is not like that. Yes, everybody has different roles, specific roles, and everybody is good at it. And अगर एक पर्टिकुलर आर्म्स या सर्विसेज या कॉम्बैट सपोर्टिंग आर्म्स नहीं रहेंगी, तो पूरा इंडियन आर्मी लिटरली इट अंडरस्टैंड विल गो अंडरगो chaos. मैंने ये क्वेश्चन मेरा क्यों आया, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि ना मैंने गोरखा का बारे बहुत सुना है, मैंने उनकी स्टोरी सुनी है, मे बी सोशल मीडिया पे जो आर्मी फैन फॉलोइंग है वो गोरखा को अलग प्रेजेंट करते हैं. Okay, so now let me speak about Gorkha, because I'm a Gorkha. So the reason why we talk about Gorkha and so much Gorkha regiment and the जो उसकी हम बात करते, see, it is one of the oldest. It is one of the oldest regiments of Indian Army. So you can understand the service, the values, the ethos, and the principle. That is, something to look up to. ये तो हो गई आपकी सिर्फ आर्मी की बात. सेकंड, ही इज अ गुरखा, पहाड़ी. तो एक जो फिजिकल इंड्योरेंस होता है, जो कहते हैं ना कि सख्त बदन और सख्त खून, वो होता है गुरखास में. इट्स देयर. दैट इज अबाउट फिजिकल इंड्योरेंस. थर्ड, you come about the loyalty, and the loyalty which you see in Gurkha soldiers, okay, is so high. I think that is something that everybody needs to emulate. And जैसे कि मैंने कहा कि हर रेजिमेंट, हर कोर, हर सर्विस, हर कॉम्बैट सपोर्टिंग सर्विस आर्म्स की जो होती है, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है. सो आई थिंक लॉयल्टी एंड द डेडिकेशन विच गुरखास हैव, दैट इज समथिंग जो सबको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, उसके ऊपर कहानियाँ बननी चाहिए. एंड गोरखा इज वन ऑफ द only regiment, of course, I think, because बाकी तो बिहार, जाट, गढ़वाल राइफल्स अलग हैं. It's the only regiment actually in Indian Army जहाँ पर the officers have to learn the language. Sorry, what language they have to learn? Nepali. Okay. गोरखाली सीखनी पड़ती है भाई. Okay, it's mandate. It's mandate. And the best part is, now where Varun is, and Varun, my husband, his boss is a Gurkha officer, and his wife, even his wife speaks Gurkhali. Okay. And she speaks it so well. So, so when you're talking about Gurkha, so I took the liberty, because, my father was a Gurkha, he was in Gurkhas, my grandfather, my great grandfather, all of them. So that is why I described it a little. But if you want me to pick out the best, that I will not be able to do, and I won't do it. I love you for saying this. Still being a Gurkha, but you, yes, everyone is same. Everyone is same. It's just, it is just the media part where people just portray things. Okay, Gurkha, they are like killing. See, it's all about trend ना. जैसे आपको एक चीज़ अच्छी लगती है, and आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया, न्यूज़, कहीं पे भी किसी को वो चीज़ अच्छी लगी, उसको ट्रैक्शन मिला, वो चीज़ वायरल हो गई. So now, फिर it's a loop. And now in the recent times, why it has come into limelight, Gurkhas, more is because of Vicky Kaushal's movie.
Hmm. over Sham Manekshaw, so everybody knows it. So that is why. And How what's your view of Sham Manik sir? उनके ऊपर आपका क्या view है? what do you want to know about, मतलब personally, Like professionally? just looking at कि he was a different kind of a person. He is a legend and he is a national hero. अब इसमें क्या है कि lot of factor, he professionally was very good. Intellectually, I think there is no competition to him, and he was a good human. So you know, when everything is, you know, एक सर्कल बन जाता है आपकी लाइफ के अराउंड, and somehow things work in your favor, and for him things worked in his favor. For example, because of General Yahya Khan and all that situations that happened, and 71 war happened, he retired as field marshal. Hmm. Otherwise he could have retired as chief of army staff. So you need to understand that whatever your personality is, with that, if you are a good human and a good leader, I'm talking with respect to military parlance, wisdom, experience, though everybody gets along the way, but you have to be a good leader. When I say about good leader, you need to understand your men, you need to empathize with your men. I'm not saying that sit and cry with them. Empathy is different. People, they mistake empathy for something like साथ में बैठ के रो लेते हैं. That's wrong. So if you're a good human, you are a good leader, things work along your favor. And look at him today, he's a legend, he's a national hero. So there are so many things to learn from him, and that is why I think there's a movie made on him, and that is why people are still talking about him. There are books written on him, biographies after biographies. So I think even if I try to say anything, it would be an injustice, but I tried to. उस मूवी में ना एक चीज दिखाई थी कि he gets connected to his men very, Yes, जो एक पर्सनल लेवल पे जाके होता है. Does it really happen in it defense? has to happen, it has to happen, because understand the fact कि आप अपना घर छोड़ के आए हो. एज एन ऑफिसर मुझे 80 दिन छुट्टी मिलती है, एक जवान को 90 दिन छुट्टी मिलती है. आप वो 80 दिन आपको पूरे, मतलब आपको ऑथराइज्ड है, मतलब वो आपको साल में ये है कि आर्मी रेगुलेशंस के हिसाब से आपको वो मिली हुई है कि आपकी 80 दिन है और जवानों की 90 दिन छुट्टी है. बट ऑपरेशनल एक्सीजेंसीज की वजह से, रिक्वायरमेंट्स की वजह से आपको हमेशा नहीं मिल पाती है. तो आप कहाँ हो? आप कैंटोनमेंट में ही हो, आप अपनी यूनिट में ही हो, आप अपने रेजिमेंट में ही हो, आप बैठे हो वहीं पे. तो अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो तो आपका अपने परिवार के साथ टेक्निकली एक कनेक्ट छूट चुका है. Yes, mental and spiritual connect will always be with your family, but your physical connect is not with your family. And man is a social animal. We need that physical connect, we need that social connect. Where will we get it from? We'll get it from our immediate. And दूसरी, पहली बात तो ये requirement खुद की है. दूसरी requirement है आपकी organization की. If you don't know your men, and it's not only in army, it's in corporate also. अगर आप उन्हें नहीं सुनते, आप उन्हें नहीं समझते हो, तो आप उसको कैसे लीड करोगे? और आप कैसे सोचते हो कि वो आपकी बात सुनेगा? शायद एक लेवल तक सुन लेगा, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ सुनने की नहीं है. यहाँ पे ये है कि अगर चीज़ें ख़राब हो गई, सो व्हेन यू टेल हिम कि बेटा आगे बढ़ो, और उसको पता है कि आगे मैं बढ़ूंगा तो आगे मौत है. So it's about life and death here. So when the concept is about life and death, then till the time the personal connect is not there, why will he or she listen to you? It's more like एक family build-up की है कि जहाँ पर it's more like brotherhood की. It's the brotherhood and camaraderie. ठीक है, like example, if your father says आज के डेट में कि निखिल ये करो, आप करोगे. Yes. Because you have that connect with him. Of course, it's a family connect. It's a connect which is by birth. But all connects by birth will not happen. Exactly. It has to be nurtured over a time. It has to nurture, like your friendship, your marriage, your own relation with your own kids. तो वो तो है, करना ही पड़ेगा. So what they have shown in that movie with respect to General Sam Manekshaw having such, you know, in-depth knowledge about his soldiers, and going to the level कि उनको पता है कि उसके साथ क्या issues है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे है, तो वो तो करना ही पड़ेगा और वो होना भी चाहिए. And if somebody is not doing it, then there's something wrong. I will talk about little more on women serving in army. लेकिन मुझे ना उससे पहले एक चीज़ पूछनी थी.
जैसे मैं गोरखा के बारे में बात कर रहा था, मैं या फिर बेस्ट रेजिमेंट या फिर बेस्ट यूनिट के बारे में बात कर रहा था. डिफाइन पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरा एसएफ जो होते हैं, they are like elite. Okay, so पहली बात तो again I like to paramilitary forces अलग होता है और para SF अलग हाँ, होता है. I just want you to define me these two for me कि these are how does the one reach there. एक होता है कि जनरल तुमने आर्मी सर्व किया, they just are different wings of army जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जगहों पर जाते हैं. तो I want you to help me understand the hierarchy, how does one reach there. And para SF, para SF is a part of Indian Army only. ठीक है? Okay. Special forces, para special forces. So once when you are getting commissioned into Indian Army, so like जैसे आपके regiments होते हैं, infantry, ASC, AOC, artillery, so para SF is also a choice that you fill in. Okay, it's nothing special. No, it is special, of course, the training and everything. So because ये ऐसे मत बोल देना किसी para वाले को, वो बोलेगा ऐसे कैसे हमें बोल दिया, हम तो para SF वाले हैं. But that's what I'm saying. I mean, they carry a different see thought. They carry a different thought in the sense कि it's one of the hardest training, toughest training, not only in Indian Army as such, it is in the world. मैं ना ये चीज़ इसलिए उठा के लाया था बिकॉज पूरे वर्ल्ड में ना एक चलता है कि हम जितनी भी वेब सीरीज देखते हैं, हमें कहाँ से कंज्यूम होता है डेटा सारा, हमें मीडिया या फिर न्यूज़पेपर से कंज्यूम होता है. एंड सिर्फ मीडिया रह गया अभी, उस पर जो दिखाते हैं हम कहते हैं ऐसा ही हो रहा है. तो इस टाइम पे सील्स, यूएस सील्स आर द बेस्ट दे से. whether you say army, navy or या फिर air, they are trained in that. Do we have something similar here in India? See, I would beg to differ with respect to US SEALs and if मतलब अगर US SEALs और para SF की अगर हम vis-a-vis करें तो I would rate my तो नहीं बोलूँगी, our country's para SF here and then SEALs here. Because see, everything comes from the foundation of the concept of army. जो मैंने शुरू में बोला था, that why army was made, उसका basis क्या था. शुरू में जब लोगों को लगा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, एक पेरीमीटर बनाया, पेरीमीटर बना लिया, तो पेरीमीटर बना मतलब एक बॉर्डर बना लिया, पेरीमीटर बना लिया, पेरीमीटर के बाद अच्छा पेरीमीटर छोड़ दिया उन्होंने, फिर उन्होंने लगा अरे सिर्फ बॉर्डर बनाने से नहीं होगा, किसी को बैठना भी पड़ेगा वहाँ पे. ठीक है, अर्लियर इट वाज विद रिस्पेक्ट टू सेफगार्डिंग अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, लेटर ऑन इट progressed over humans also, etc, etc, right? So the basic concept of army is defense and protection of your own territory, your own sovereignty, your own nation, and maintain law and order in your country. Why I rank my para SF personnel here over vis-a-vis US SEALs is because they are doing what army is actually meant for. There is a lot of talk going around क्योंकि कई सारे हैं जो ये बोलते हैं US Army is the best. Sorry, I beg to differ. They have lost 2 major wars in the most recent times. Vietnam War, Afghanistan, absolute failure. Absolute failure. And one thing that I tell them, it is very easy to be number one. Of course, you have the best equipment, you have the best gear, you have the everything is best. But does that qualify you to be best? You are a developed nation. You are the number one nation. You are the most powerful nation. But that does not give you the right to be best. Why? Because it is very easy for me to go and bombard a country for 10 days straight and highlight every concept of being out there, then create a fortress, protect that fortress, and जो बची कुची कसर रह गई है आप उनके घरों में भी जाके उनको निकाल के लेके आ रहे हैं और मार रहे हैं and torture कर रहे हैं. That is not power, that is not tactics, that is not strategy. So if on innocent people showing power makes you like, you know, the people say कि US Army is the best, and मैं सिर्फ ये वर्ल्ड नहीं कह रही है, कुछ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने भी बोला है. सो आई एम सॉरी. जो ये जॉइंट ऑपरेशन एक्सरसाइजेस होते हैं, इट्स ओके, उसमें कुछ थ्रेट टू लाइफ थोड़ी हो रहा है. लुक एट आर आर्मी. They serve at -50 and they go at +50, 55 भी पहुंचा है पिछले साल. And the battlefields are in our own country. हम किसी कंट्री पे जाके नहीं कुछ कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री को ही बचा रहे हैं. And that is what the entire point of army is.
and that is what our army is doing and our para SF personnel are doing. So with respect to, you say about tactics, strategy, power, idea, courage, strength, dedication, everything, para SF is here. For me, US SEAL, sorry, don't deserve it. That's my take. No, I'm Somebody might differ. They have a different opinion. It's okay, Yeah. but when I'm an army officer, and when I say army, and when I say defense, armed forces, everything starts from base. You cannot go wrong at the basics, and if you've gone wrong at the basics, फिर उसके बाद आप उसको करते रहो, तो ऐसे तो नहीं होगा. You may have the best equipment, you may have the best weapon, you may have the best armor, but that does not give you the right to call yourself the best. I know social media pe, Twitter, etc., there are a lot of talks going around, ye hota hai, but then everything today, you and I know, it's all clickbait. People for their own selfishness is not the right word. People for their own ideation and everything, they are creating a news, they're creating a ticker, they're creating a headline, and that clickbait happens, and then it goes on and on and on and on and on, and people think that, oh, this is the truth, but that's not the truth. And I always say, when you want to ideate and equate, start from the basics. Okay, you've been part of Indian Army. Which other army out of apart from India you resonate with? ये क्वेश्चन मुझसे किसी और ने भी पूछा था recently, so because I have had a tenure in United Nations. Okay, I want to know more about that. मैं उसके मेरा question डाला था ये चीज. So again, you will tell I'm diplomatic biased, but I have worked. You worked with United Nations ना? हाँ, तो I have. नहीं तो आप मुझे You get it? I got the point, but see, I have वहाँ पे सारे countries थे. So okay, सारे मतलब I'll tell you the main people. I have worked with Mongolia, South Korea, China, Japan, Pakistan was also there, Bangladesh was there, UK was there, US was there, Russia, Ukraine. Even we had you can say military personnel from Papua New Guinea. We had from this Fiji, small island. So everybody is you need to understand that every army has been created for a different reason, for different countries and everything. For some it is actually functional like ours, for some it is about gaining supremacy, for some it is just ceremonial, for some it is like a show of might and pride कि यार सबके पास है हम भी बना लेते हैं. So so the factors are different, the equations are different, hence the way they process, जैसे वो होते हैं process करते हैं, and the way they think is different. So resonate तो कोई भी आर्मी किसी से नहीं कर सकती है, but best part about United Nations, आप उनसे सबसे best सीखिए जो उनके पास है, और मैंने वही किया. And of course जब United Nations जाते हैं, so you send your best, because you are the person who's there, they are representing your country. Yes. So I learned from the best whatever I could. And I think you were the best. That's the reason you were there. मतलब for that particular appointment, yes. How was the experience? How does this happen? Like, क्या होता है exactly? You guys go. What do you guys do there? Okay, so there are two ways that you go. Two ways मतलब एक तो contingent जाती है आपकी पूरी की पूरी. Contingent में आज के डेट में सिर्फ infantry वाले जाते हैं, and there's a part of engineer also that go. ठीक है. And infantry में of course, because we are not yet into combat forces, so women officers don't go in that. In engineer, that engineer battalion that goes, the component of engineer that goes, उसमें women officers go, because engineers में women officers हैं. Now so we have a contingent, and we have a concept called a staff officer. Staff duties जो basically होती हैं. So I went as a staff officer. Now when you go as a staff officer, there are only few appointments जो कि by name आती है, depending on your आप कह सकते हो on your entire service, your results, your reports, and how you have done. So उस बिले में आप fit होते हो, तो बहुत ही कम ऐसे appointments हैं जो by name आएंगे, like you are that good that you're going to that particular appointment. However, for other appointments, like जो staff officer appointment जैसे मैं गई थी, and so many other appointments like military liaison officer, MLO भी बोलते हैं, अलग दो तीन ऐसे staff appointments जो आते हैं, तो उसमें आपको select किया जाता है. Like there's a batch which is formed. Like when I went for my interview, there were 5 of us. In that 5, one was my senior,
one was me and 3 were junior to me. So you know, तो एक वो बैच बना लेते हैं, 1-2 साल का जो बैच होता है. And of course you have to do good in your reports, confidential reports that you get. CRs बोलते हैं हम लोग उसको. आपके जो पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं वो आपको करने चाहिए. आपके कोर्सेज में आपको अच्छा करना चाहिए. जस्ट बिकॉज यू हैव डन इट डज नॉट मीन दैट यू विल गेट इट. यू हैव टू गेट अ आई ग्रेडिंग, इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग यू हैव टू गेट. सो यू नो, तो इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट. फिर एक एवरेजिंग होती है, तो उस only from a particular average and above, that means the top people are taken, and then there is an interview that is scheduled. So you go for that interview. There is an entire panel of major generals and one lieutenant general who's sitting, and they can ask you anything under the sun. You have to reply to it, and accordingly वो आपको बता देते हैं कि are you selected or not. And तब तक आपकी हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही होती कि क्या. And it's not about going to the UN, it's about basic human. एक वो होता है ना कि यार रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं हम लोग कि फेल नहीं होना यार, मतलब सेलेक्ट हो जाए तो कितना अच्छा है. सो तो वो एक फीलिंग रहती है. एंड तो मैंने वो इंटरव्यू पास किया एंड आई वेंट टू साउथ सुडान. सो या, दैट्स ग्रेट. दैट इज इट. Can I call you Colonel साहब in the podcast, just to be a little more frank? हाँ बोलो बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. मुझे ना एक चीज़ बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी भी आर्मी के अंदर नॉट इन इन्फेंट्री, इन द वॉर, इन द कॉम्बैट वुमेन नहीं है. इज देयर अ ड्यू? और यहाँ पर काफ़ी मैंने ट्विटर के ऊपर ही सिर्फ रैंडम फेमिनिस्ट लड़कियों को देखा है. ओ, दे आर नॉट सर्विंग आर्मी, they are nowhere close to the army, and they pass statements कि this is यहाँ पर feminism होना चाहिए, equal rights होने चाहिए, ये होना चाहिए. How do you look at army on the basis of gender? वहाँ की female है, men है, and how they are deployed? And do you feel is there any favoritism toward men or female, anything you feel कि जो different है, जो nature से हटकर हो रहा है? अब यहाँ पे वो शब्द आएगा जो मैंने ब्रूटल बोला. ब्रूटल ऑनेस्ट जवाब दूं? हाँ हाँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग कि देखो, फेमिनिज्म तो आर्मी में आ ही नहीं सकता. पहली बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म जो है कि जो हम बात करते हैं आज के डेट में, लेट्स नॉट ब्रिंग फेमिनिज्म इनटू आर्मी, बिकॉज व्हेन वी से दैट आर्मी हैज नो जेंडर, इट इज जस्ट ही और शी इज अ सोल्जर. तो फेमिनिज्म तो बात ही खत्म हो गई जब हम जेंडर पे ले ही नहीं रहे. पहली बात, ये मेरा थॉट प्रोसेस है. लोगों को कुछ अलग लगता होगा कि नहीं नहीं ये सब है वो सब है करके, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, बट लेट्स नॉट गेट द टर्म फेमिनिज्म एज सच, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो आप अनफेयरनेस, बायसनेस की बात कर रहे हो, आर्मी तो अलग बात है. हमारी सोसाइटल और हमारी कल्चरल कंडीशनिंग ही ऐसे हैं इन विच men are favored and women are less favored. Favored in the sense not with respect to giving only jobs. This is with respect to everything and anything. आप आज के डेट में हमारा सेक्स रेशियो मेल टू फीमेल इज hugely, मतलब I think 946/1000. So हमारा तो कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है ना. For a woman, for a baby or for a fetus to actually grow into a girl and then into a woman, तो कंपटीशन और अनफेयरनेस एंड बायसनेस तो वहीं से शुरू हो रही है ना, कि शायद उसको पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा, या पैदा हो भी रही है तो मार दिया जा रहा है. सो दैट अनफेयरनेस और जो बायसनेस की हम बात कर रहे हैं वो कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा रहेगा. एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स एवरीवेयर इन द इंटायर वर्ल्ड. एंड ट्रस्ट मी, जब आप कहानियाँ सुनोगे बाकी कंट्रीज की, दे आर वर्स देन अस, वर्स्ट. हाउएवर, आई ऑलवेज फील दैट इसको चेंज करना है, जो अनफेयरनेस एंड बायसनेस है. व्हाई आर वी ओनली क्वेश्चनिंग मेन? व्हाई आर वी नॉट क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स एज अ वुमन? सबसे पहली लड़ाई अपने से शुरू करो, और सबसे पहला चेंज अपने से शुरू करो. एंड आई फील दिस वाई, बिकॉज व्हेन आई वाज इन यूनिफॉर्म, माई फर्स्ट थिंग जो मेरे पापा ने मुझे बोला और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स बोलते थे या ट्रेनिंग के दौरान एंड एवरीथिंग इज, यू आर एन ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर, रिमेंबर दैट. सो पहले दिन से हम ओथ भी लेते तो हम वुमेन ऑफिसर करके थोड़ी लेते हैं. हम तो वुमेन और मेल ऑफिसर करके नहीं लेते ना, हम तो ऑफिसर लेते हैं ना. टुडे आई गेट कमीशन इनटू द एज एन ऑफिसर इन द, ऐसे करके हम ओथ लेते हैं.
सो फिर पहली बात तो अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दो दैट आई एम अ वुमन, आई एम एन ऑफिसर, रिमेंबर दैट. एंड इफ एनीबडी इज ऑल्सो saying that like मैं तो हर जगह जाती थी तो लोग मुझे बोलते थे वुमेन इन द आर्मी. मैंने कहा हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज, वुमेन इन द आर्मी टर्म क्यों रखा गया है? बट पीपल आर यूजिंग इट एंड पीपल आर लूजली यूजिंग इट. वुमेन एंकर्स आर यूजिंग इट ऑन सोशल मीडिया, ऑन न्यूज चैनल. सो हमें जो चेंज लाना है, जो सोच लाना है, कल्चरल और सोसाइटल तो लाना ही लाना है, बट सबसे पहले अपने से लाना है. इफ इन केस आई एम फेसिंग एनी थिंग एज अ वुमन which I feel is wrong, or it is anywhere that it is कि मुझे वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी तरफ अनफेयर हो रहा है, call it out, say it out, point it out. सबसे पहले तो वहां से शुरू होता है. दूसरी बात, yes, there will always be, मैंने बोला ना, वो रहता ही रहता है. And how, again, फिर वो बात आप ही पे आती है, how you tackle around it, how you work around it, and how you take that as a challenge to grow out of it and perform your best is up to you at the end of it. Because the society and the ecosystem is made as such कि आप पैदा होने के लिए लड़ रहे हो, तो सर्वाइवल के लिए तो आपको सोचो कितना लड़ना पड़ेगा. And the female itself is part of it. Yes. And can I say something? औरत ही औरत की दुश्मन है. I'm just passing a comment. Just passing a comment. See, just to lighten the note. अब दूसरी बात ये है कि what environment you are getting in the unit and everything and all. अभी जैसे I was very lucky. मतलब लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे साथ आर्मी में कुछ खराब हुआ है. वो नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं खराब हुआ है, मेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ है. I have had brother officer बोल दूँ, मतलब amazing, मतलब my juniors, my seniors, my counterparts ना. तो मैंने कभी अपने आप को फील होने दिया कि यार आई एम अ वुमन, तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, है ना. और ना उन्होंने मुझे कभी फील होने दिया. कहीं पे भी मुझे हल्की सी डाउट अगर आ भी जाती, होता है, कई बार हो जाता है, इट्स बेसिक. योर जेंडर यू कैन नॉट चेंज, योर योर अगेन कल्चरल कंडीशनिंग तो मेरी भी थोड़ी हुई है ना कि आई एम अ वुमन. ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही चला जाएगा. तो मुझे भी जहाँ थोड़ा शक हल्का सा हुआ है, तो उन्होंने बोला नहीं, चलो यू कैन डू इट. हैज इट देखो, men come from a different mentality. और ना मैंने काफ़ी, ये men mentality है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ या फिर ऐसे नहीं बोल रहा कि हर एक की है, बट दिस इज़ व्हाट ऑब्जर्व्ड. ठीक है, दे कैन नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम वुमेन. नहीं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ. Is it somewhere in your lifespan has ever happened कि you have to prove your mettle कि यार in Indian, अभी मैं इंडियन आर्मी पार्लेंस में बात करती हूँ, ठीक है. इन इंडियन आर्मी every officer oblique every leader, चाहे आप एक जवान हो, देखो आप जवान हो लेकिन आपके अंडर भी कोई जूनियर होगा. आप एक जेसीओ, आपके अंडर तो बहुत सारे जवान होंगे. आप एक ऑफिसर हो, आपके नीचे जेसीओ भी है, जवान भी है, सब है. every one of us, every soldier has to prove their worth. It is not depending on gender. Your worth and your performance speaks for you. It is not based on gender. तो and I say ये मेरे साथ हुआ है. And as I said, I've been lucky. I've got good mentors, good seniors who have shaped me, groomed me like that. And one thing they said कि यार देखो, तुमने अगर काम अच्छा किया ना बच्चा, और तुमने अपना काम सीखा है और तुम वो काम ग्राउंड में कर रही हो, वो नहीं देखेगा कि तुम कौन हो. Because honestly, after a certain point ना, मतलब you forget you are a woman, and if you are good at your job, they forget that you are a woman. For them, you are just a leader, you are an officer, you are giving orders, and they better listen to it. क्योंकि उनको मालूम है मैं अगर नहीं करूँगा तो इनके अंदर इतना दम है कि ये खुद कर लेंगी, ठीक है, या करवा लेंगी. And if I don't do it, she has enough power to punish me, all get me punished. So you know your job, you do your job. That is very important in army. If you don't know your job, if you cannot do your worth salt of what you're earning, so then it does not matter what your gender is. Either you are a man or a woman. Person who's supposed to follow your orders will not listen to you. And I think that is not only, now I come to another point, is it is not only in Indian army, I think it is everywhere. No, the mentality is same everywhere. Mentality is same.
यस एक औरत को देख के लोगों के मन में ये आता होगा कि अरे, but then when you yourself don't have any barriers in your mind with respect to the work, with respect to the result, then सामने वाले को भी नहीं होगा. आप जहां अपने आप को लिमिट करेंगे, सामने वाला उस लिमिट को डाउट समझ के वो अपने बेनिफिट में यूज कर लेगा. The world is your mirror. Okay. ठीक है, अब इंटरेस्टिंग हो रहा है. मुझे ना मेरा आई जस्ट रियली वांटेड टू नो कि why what exactly you wanted to do in life. अगर if given a chance कि I send you back, आप अभी 17 साल की हो, ठीक है, what would you do? Would you still join Indian Army or would you do something which other thing maybe? देखो 17 साल में तो आई वाज एक्चुअली रशिंग बिटवीन प्लेसेस लर्निंग, और मैं ऐसे पढ़ाई कर रही थी क्योंकि आई वॉज PCMB में बस मैथ्स और बायो दोनों था, सो आई वॉज बेसिकली जस्ट सर्वाइविंग. सो इफ यू आस्क मी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वही था, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ करना है ना. एंड बिकॉज हमारे फैमिली में था एवरीबडी विल स्टडी साइंस, तो हमने साइंस पढ़ा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2002-2004 की बात है, 2002-2004 के बीच की बात है, ये 16-17 साल की जो बात होगी. So that time though things were different, the mentality was different, the avenues, the ideas and the acceptance जो आज की डेट में है with respect to so many things, है ना, कि आप क्या कर सकते हो, वो उस टाइम पे नहीं था honestly. and that is the reason मेरे पास PCMB था कि मैथ्स और बायो की, ठीक है इंजीनियर नहीं बनेगी तो डॉक्टर बन जाएगी, डॉक्टर नहीं बनेगी तो इंजीनियर बन जाएगी, एंड वाइस वर्सा. इफ नॉट एनीथिंग एल्स IAS की तैयारी करेंगे. So but yes, that being said, that time army तो सोचा था, it was a faint thought इतना, मतलब because I said ना I was barely surviving that time, मतलब पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा ये सब सोचा ही नहीं. But one thing that my parents always taught me was like, see, do whatever, आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी करो, create an ecosystem around you that people listen to you, you can help people and you can be of value to the society. चाहे आप बड़ा आदमी बनो, चाहे आप छोटा आदमी बनो, this is what my parents always said, that be a good human being and be of some value to the society. तो मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे उस टाइम पे शायद पता ही था क्या करना है, लेकिन मुझे इतना पता था कि wherever I go, whatever, these values I have to take with me ahead, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला है. एंड आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड, आज के डेट में जो ये क्योटिक हो रखा है हर जगह, ये वैल्यूज़ तो हर किसी के पास होने चाहिए. आप बड़ा आदमी बनो, छोटा आदमी बनो, कोई भी अपॉइंटमेंट जाओ, कुछ भी प्रोफेशन करो, एंड वी रियली नीड दीज वैल्यूज़ टुडे. एंड डजेंट मैटर विच प्रोफेशन यू आर, डजेंट मैटर कहाँ पहुँचे हो, क्या कर रहे हो. But where did the seed of defense, आपके जो faint thought था, how did this come into reality? हुआ क्या? So हुआ ये कि 92 में वुमेन ऑफिसर्स का एंट्री शुरू हो गया था. 98, 97, आई नीड टू गेट माई फैक्ट्स राइट, क्योंकि अगर गलत हो जाता ना तो माई फादर वॉचेज द एंटायर पॉडकास्ट, फिर बोलते तुमने ना यहाँ पे लाइक इन वन ऑफ द पॉडकास्ट, आई थिंक वो मेरी गलती से निकल गया था कि 4 years ऑफ NDA ना, इट्स 3 years. तो आई सेड डैड निकल जाता है. नो, बट लाइक ओके ठीक है कोई बात नहीं. सो इट्स ओके. सो somewhere in between 98, 97, 98, my father got posted to OTA Chennai, Officers Training Academy, जहाँ पे Short Service Commission Officers का training होता है. So now my father is from artillery. 92 में तो women started getting commission as officers. So हमने तो देखे ही नहीं थे, because my dad is from artillery, which is a fighting arm. तो अब that concept was not there only. फिर 98 में जब मेरे फादर गए एंड ही वाज इन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ही वाज द ट्रेनिंग ऑफिसर. सो हम गए एंड हमने वहाँ देखा देयर वर लेडी कैडेट्स, LCs बोलते हैं, लेडी कैडेट्स. तो हमने कहा ये क्या चल रहा है, मतलब इट वाज लाइक समथिंग नया, मतलब लाइक वी वर लाइक एलिस इन वंडरलैंड की तरह ना, कि मैड हैटर भी आ रहा है. सो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. सो हम गए एंड वी वर यू कैन से अमेज्ड, enthralled, inspired कि
ये सब कुछ कर रही हैं जो सब कर रहे हैं. एंड ऑनेस्टली वहाँ पे क्योंकि बाल वाल कट जाते सब कुछ आ जाता है तो टेक्निकली दूर से तो आपको पता ही नहीं चलता कि लेडी कैडेट है या जेंटलमैन कैडेट है, सब साथ ही दिख रहे हैं. एंड सब बिल्कुल पतले ऐसे बिल्कुल सूखे नंगे से हो रखे होते, इतने पता ही नहीं चल रहा होता है. यू कैन नॉट एक्चुअली डिसाइफर हु इज व्हाट, मतलब ना. एंड इट इज़ ओनली जब आप नज़दीक जाते हो, जब वो बोलते हैं तो ऑब्वियसली वुमेन की आवाज़ अलग होती है, मैन की आवाज़ अलग होती है. तो अच्छा ये तो दीदी है, मतलब उस टाइम पे हमारे लिए दीदी थी. सो फिर मैंने पूछा पापा ये क्या है करके, क्योंकि उस टाइम पे हम कहाँ न्यूज़ पढ़ते हैं, 5-6 क्लास में होते हैं, तो हमने क्या न्यूज़ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा. देन ही सैट एंड एक्सप्लेन टू अस कि ऐसे ऐसे है, यू नो, नाउ वुमेन आर नाउ गेटिंग कमीशन्ड एज ऑफिसर्स. जितना वो समझा सके, जितना हमें समझ में आया. बट एक इम्प्रिंट आपकी माइंड में रह जाता है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एंड एन इम्प्रिंट, एंड इट कैरीज ऑन विथ यू. एंड उसके बाद तो the numbers kept on increasing, we kept on meeting women officers. So you know, you see them in uniform, you see them conduct themselves. It's like wow, because you have seen your father in uniform, so you know like this is it, this मतलब इसके नीचे अचीव नहीं करना है करके. So you know that is like your benchmark. You have to go above it, and then you see a woman in uniform, and then you're like, wow, it is possible. जो हमें नहीं पता था. So that was there. बाकी पढ़ाई लिखाई चलती रही. I did my graduation. After that, I cleared my MSc also, but somehow I just said I don't want to study anymore. I want to work. I started working. बट वही है हमारे घर का माहौल, 4th generation फौजी, एवरीबडी फौजी. माई सिस्टर वॉज एनसीसी कैडेट, शी डिड अ थल सैनिक कैंप एंड एवरीथिंग. माई वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल वन वॉज इन एयरफोर्स एनसीसी, वन वॉज इन नेवल एनसीसी. My father's postmate's daughter, she was preparing for CDS. She was not in NCC, but she was preparing for CDS. तो आपका माहौल, your entire मतलब everybody is like, you know, army 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 army. एंड कोई मिल जाता था तो वो भी बोलता था कि यार यू आर नॉट, इसको तो भेज दो, यू नो, पोस्टमेट्स भी मिल रहे, सीनियर भी मिल रहे, इसको तो भेज दो, ये तो हो ही जाएगी. तो वन फाइन डे डैड सेड, डू यू वांट टू राइट अपीयर फॉर CDS? I was working that time, and I was earning very well. Were you into corporate sector? Yes. Okay. I was working with HSBC Bank, and Okay. I had a good shift. My shift was from 11 to 8. Perfect shift. हाँ, perfect shift. 11 to 7. 8-8:30 बजे तक I used to be at home. तो क्या चाहिए किसी को? And I was like, I was earning so well. 7th पे कमीशन तब आया नहीं था. ठीक है. So basically लेफ्टिनेंट से मैं 3 गुना ज़्यादा कमा रही थी उस टाइम पे. So you know, for you it's like कि अच्छा ठीक है. But once you start earning, then changing your profession, it's a tough. एक thought आता ना कि क्यों? Is it necessary? But फिर I was like ठीक है, let's try. Then dad said कि करना है. मैंने कहा but I will only try once. So he said try. My embargo was once. तो हम लोग अपना वो खेल रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डॉग नहीं, वो क्या बोलते हैं कि you reply. नहीं हम लोग क्या करते हैं उसके साथ हैगल, जो हम सब्जी वाले के साथ करते हैं. 5 रुपए 2 रुपए, मतलब वो हम क्या बोलते हैं, बार्गेन, नेगोशिएशंस कर रहे थे. नेगोशिएशन बार्गेन, यार सॉरी दैट्स सो नेगोशिएशन चल रहा है. I said I'll only try once. He's like हाँ ठीक है, एक बार तो करो. And I went for CDS. I wrote my exam. I was like नहीं होगा, मतलब हो ही जाएगा, देखते हैं. And I cleared my written exam. फिर SSB आया. Then I said SSB कहाँ था आपका? Bangalore. So I was like क्या होता है पापा इसमें? तो he gave me a very rough वो कि एक ये राउंड होता है, ये राउंड होता है, ये राउंड होता है. I was like ठीक है. वो तो I was like कितना ही मुश्किल होगा, एक ग्रुप डिस्कशन है, एक थोड़ा बहुत फोटो देख के पेपर लिखना है, ये सब ऑल दैट. ही इज थीमेटिक अप्रिसिएशन. इतना अंग्रेजी तो तब पढ़ते भी नहीं हो आप, मतलब यू डोंट लिसन, यू डोंट रजिस्टर. ही लाइक सो व्हाट आई रजिस्टर्ड वाज फोटो दिखाया जाएगा, उसके ऊपर एक लाइन लिखना है, और ग्रुप डिस्कशन होगा, ऐसे होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप टास्क होगा, इंडिविजुअल टास्क होगा, एंड ऑब्स्टिकल टास्क होता है. यू आर अवेयर ऑफ इट. ऑब्स्टिकल टास्क होता होगा. तो आई वाज लाइक ठीक है, हो जाएगा, देखते हैं. वहाँ जाके इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड पीपल आर स्टडीइंग, पीपल आर रीडिंग. आई वाज लाइक I called up my dad. I said, you said कि simple होता है, everybody is studying here. There's fulcrum, किताबें लेके fulcrum, liver सब चल रहे. पापा is like, you do what you want to. You just go and play. You have prepared whatever you could, and your preparation is what I told you. And that was a 1 घंटे का class, हाँ. Because मेरे पास भी time नहीं था, पापा के पास भी time नहीं था. My father that time was on study leave, तो he was also studying पूरा ना, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वो.
तो वो सुबह क्लासेस के लिए चले जाते थे और फिर उसके बाद उन्होंने एंड दैट टाइम कंप्यूटर वाज द इन थिंग सो ही वाज डूइंग एक्स्ट्रा कंप्यूटर एप्लीकेशन degree also. So he was doing 2 degrees at one time. So he did not have time. I was working. I did not have time. So somehow 1 घंटा निकाल के उन्होंने मुझे पढ़ाया. बोलते you have been prepared by me. I said 1 घंटे का preparation जो आपने दिया था, like हो जाएगा and हो गया and I made it into the merit and today I am here. But it was only I said one chance. Like I said one chance and he said ठीक है, apply तो करो, try तो करो and that's it. SSB याद तो रहता है हमेशा. Obviously. SSB is one of the best thing you do. और मेरी स्टोरी सुनोगे तो हंस के पागल हो जाओगे. Tell me about that. नहीं, in the sense, not in the हंस के, in the sense कि you know. SSB में कुछ अजीब लोग भी मिलते हैं. मेरे को बहुत अजीब लोग मिले हैं जो. I would not say अजीब but very competitive. हाँ. मतलब अजीब तो नहीं बोलूँगी. Everybody was good. Because see for me also for the fact that understand for me I'm a 4th generation officer. तो मुझे इतना तो पता था कि यार देखो मैं शादी तो फौजी से ही करूँगी. So oh my dad had made a matrix. Okay. नहीं matrix पता है क्या था? Priority 1 मतलब दामाद जी का priority 1 was he should be a Nepali and a army officer. Priority number 2 Nepali आर्मी ऑफिसर नहीं है तो बट नेपाली. 3rd एनी पहाड़ी आर्मी ऑफिसर. ठीक है. 4th पहाड़ी मतलब हिमाचल गढ़वाल ऑल दैट एंड ऑल बिकॉज हमारा थोड़ा मैच होता है. 4th इज पहाड़ी समथिंग बट गवर्नमेंट सर्विस. 5th वाज कि आर्मी ऑफिसर. ठीक है. बट ऑब्वियसली हिंदू रिलीजन सेम रिलीजन में रहिएगा. उसके बाद फिर बोला कि ठीक है आर्मी ऑफिसर नहीं तो कोई गवर्नमेंट. तो देयर वाज अ मैट्रिक्स. ही सैट डाउन एंड एक्सप्लेन्ड इट टू मी. सो आई न्यू इट दैट आई एम गोना गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर और आई विल बिकम अ फौजी. तो दोनों में से एक चीज. सो आई थिंक फॉर मी एंड बिकॉज दैट थिंग वाज देयर कि लिमिट कि एक बार ट्राई करूंगी, हो गया नहीं हो गया. एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर वाज ऑलरेडी देयर इन मी कि इट्स ओके इफ आई फेल फाइन आई विल chart another path. But the people who come there are candidates that time उनको वो failure accept ही नहीं, उनको करना ही है. So now when that acceptance of failure is not there, you become competitive to another level, which that time I was like wow मतलब in awe. But now when I look back I was like why? Because some of them did act like I was like why? Crazy. But then that's their passion, so you know I cannot but yes I can definitely now when I look back I can question like why. I don't judge but like ठीक है. I think about it like that. हम जनरल बात कर रहे थे तो SSB का कि जो स्क्रीनिंग SSB में स्क्रीनिंग होता है. तो स्क्रीन का ग्रुप डिस्कशन पापा ने बोला था कि there is a situation that will be provided to you. SRTs है ना. SRT situation reaction test. अब I know the entire full form. तब तो मैंने सोचा भी नहीं इतना ध्यान से. तो आपको बताया जाएगा एंड यू विल हैव टू अभी जैसे एक फौजी अफसर कैसे बोलता है ना, you will have to present your views and like somebody like my father like so you will have to present your views, there will be questions, counter questions and at the end you know ऐसे summarize हो जाएगा वो. like ठीक है. now he explained it like a फौजी dad. when I went there अब एक आ गया आपके पास situation. अब when I'm thinking कि इंडियन आर्मी के सिलेक्शन के लिए SSB में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो इट वुड बी ऑफ दिस लेवल. ठीक है. नथिंग अगेंस्ट एनीवन. इट वाज लाइक उस टाइम पे रोडीज आता था. I was speechless and I am someone you know like अगर तो GD is the part where भीड़ छांटी जाती है. हाँ तो भाई सब बोल रहे हैं and it was like I was fish market and I was like I did not and मैं मन सोच रही हूँ मैंने ये रोडीज की तरह क्यों रहा है. I was speechless. ठीक है. और मैं ऐसे बैठी हूँ कि यार मैंने बोला ही नहीं because you know in army you know बचपन से आपको ऐसे ग्रूम किया जाता है ना कि अच्छा बेटा गुड इवनिंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, अच्छे से बात करो. ग्रुप में भी होते तो यू नो यू वेट फॉर अ चांस टू स्पीक. बात करो. You raise a hand. Yeah. हाँ you raise a hand and everything. and ग्रुप पार्टीज में भी ऐसे नहीं ना कि आप बिल्कुल ही वाइल्डली नहीं. तो एंड माय मदर वाज लाइक यू कैन नॉट एक्ट वाइल्ड. वहीं पे सीधा ही मतलब इन पब्लिक ओनली फटिश. हाँ पहले तो होता था पता नहीं बाकी का हमारे साथ बहुत होता था. ठीक है. सेम सो हमें वो आदत ही नहीं है आउट ऑफ टर्न बोलने की. बातें हम बहुत करते हैं बट
आउट ऑफ टर्न वाला, तो मैं वहाँ वेट कर रही हूँ कि होगा होगा, हुआ ही नहीं, खत्म हो गया। तो जब वो समराइज करते हैं ना, अच्छा ठीक है कैंडिडेट टक 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 आप सब बताइए, तो मैंने एक या दो लाइन उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तो मैंने कहा हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया, ऐसा ऐसा मेरा ये, आई कम आउट। तब वो छोटे डब्बे फोन होते थे, आई कॉल्ड अ ब्रांड, आई सेड जीडी हो गया, बोलते तो कैसा हुआ, मैंने कहा मैंने कुछ बोला ही नहीं। पापा लाइक कुछ तो बोला होगा, आई सेड हाँ, आई सेड वन लाइन व्हेन ही आस्क्ड बिकॉज़ देयर वाज नो स्पेस ऑन मी टू टॉक, आई सेड you did not tell me that it's going to be like a, what you said, Fish fish market. market. Then he's like ha 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 ऐसे करके ना, तो he's like देखेंगे, मैंने कहा हाँ देखते हैं, आई एम कमिंग होम, टिकट, और टिकट करा रखी थी हमने ना, स्क्रीनिंग वाले दिन की भी टिकट करा हाँ, रखी थी हाँ, घर जाने हाँ। की, बिकॉज माय फादर वाज दैट टाइम इन हैदराबाद, तो करवा रखी थी। देन उसके बाद जब स्क्रीन इन हो गए, so then I called up, I said got screened in, then again he's like ha 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 I knew it, मैंने कहा क्या, मैंने कहा you knew it ना, I should also know it ना, what I am coming to face. So, but that was it. So you know when you asked about My SSB, so mine was in where was Allahabad, your Allahabad. Allahabad? Oh, हाँ, rejection now center. Prayagraj. And I was in the Prayagraj. toughest board called 19 SSB. हाँ तो 19 जब मैं से पहले दिन गया ना, तो मुझे मेरे को नहीं पता भाई कौन सा बोर्ड क्या होता है। मैं अपना उतरा, लोग वहाँ पे ना कोट पहन के चल रहे हैं स्टेशन पे ही, मैं घबरा गया, मैं जेन्युइनली घबरा गया। मैंने कहा मैं गलत आ गया हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक फॉर्मल्स लेकर आया, 2 फॉर्मल्स लेकर आया हूँ, मेरे पास कपड़े ही, मतलब कॉलेज जाने वाला बच्चा, कॉलेज का इंटरव्यू, यूएस एंट्री थी मेरी, मैं 2 कपड़े लेकर आया हूँ, और मैं शेव करके अच्छे तरीके से आ गया हूँ। वहाँ पे सब लोग ना ऐसे सीरियस बात हो रही है, मुझे लगा यार ऐसे सीरियस रहते हैं सब यहाँ पे, कोई हंस नहीं रहा है, कोई मजाक नहीं कर रहा है, कोई फन नहीं है। तो मैं अपना जाके बैठा हूँ, मेरा एक आधा दिल्ली के जो 2-3 लोग मिले, हम मिले, बात हुई। फिर तुम्हारा फर्स्ट डे ही जाके जीडी होता है, तो मेरे जीडी में बाय ग्रेस मेरे को जब देयर वाज समथिंग ऑन कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर वो छोड़ देते हैं, समथिंग लाइक दिस, मुझे वेगली याद है। तो एक बंदा ना ऐसे खड़ा था, उसके हाथ में पेन था, उसने ऐसे पेन ना जमीन पे मारा, When I say you all should listen, तो मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, और मैं ना ऐसे करके ना ऐसे बैठ गया। एंड द ऑफिसर्स दे डू नॉट रिएक्ट, जो सामने बैठे होते हैं ना, दे जस्ट डू लाइक दिस। तो ना उसी टाइम मुझे ना रोडीज याद आया, मैंने कहा ये तो रोडीज है, इसमें भी ऐसा करना है क्या। मैंने कहा बट मैं कभी, मतलब आई कैन नॉट कंपेयर, रोडीज इज शिट, this is a class. It is a class, but then I'm saying the general idea, you know, GD में जैसे वहाँ पे भी सभी मतलब हाँ, सब अपना अपना बोल रहे हैं। मैं how the point it started escalating is, मैंने कहा there are people who do not have the courage to take care of the grandparents, that is the reason हमारे पास अभी old age homes हैं, ये है वो है। तो वो बंदा ना उस बात से वो चिढ़ गया, मुझे नहीं पता कोई पर्सनल उसका कुछ होगा, मैं अपना बोल के बैठ गया। उसने जमीन पे पेन मारा, उसने बखेड़ा कि ये किया वो किया, एंड व्हेन आई स्पोक एवरीवन वाज क्वाइट। एंड देन मैं काफ़ी देर हाथ ऐसे रख के बैठा था, कोई मेरे को नहीं सुन रहा, मेरे को नहीं सुन रहा, मेरे को नहीं सुन रहा। देन द थिंग केम, एंड बिफोर दैट द ऑफिसर, बिफोर गोइंग टू द लास्ट, ही केम अप टू, यू वांट टू से समथिंग, आई सेड यस। देन आई सेड समथिंग अगेन, then I said, see, everyone would have a different view, but if you look at, there should never be a need for a old age home. It's, we come from a land, I just, India के ऊपर मैंने ऐसे ऐसा बोला, then I got screened in and other things happened. Then मुझे वो GD की वजह से ना, तो मुझे याद आता है वो days कि हाँ यार, जैसे रोडीज में वो दिखा रहे हैं, वो खड़े होके बोल रहे हैं, पुश अप मार रहे हैं, that is उतना नहीं होता है, but I'm just यार, you're selecting as a commissioned officer, you cannot, roadies is But energy is like that only, मतलब I'm just saying कि वहाँ पे तो बहुत कुछ करते हैं, and you know people use abusive language etc etc, that does not happen here. If anybody, sorry, if the viewers are thinking that does not happen, I am saying with respect to the fact that nobody is allowing anybody to speak, वो वाला concept यहाँ पर भी है। And that happens, I think, and that is the reason, जब उसके बाद जो लोग रह जाते हैं ना, then your actual thing starts. Yes. एंड ट्रस्ट मी, सबसे टफेस्ट चीज़ जो पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू तुम्हारा सबसे एंड में जो होता है, मैंने कभी घबराहट इतनी महसूस नहीं की कि मेरी रूह कह रही है तेरी, तू उठ जा और चला जा यहाँ से। बाहर बैठ के ना तुम वेट कर रहे होते हो कि तुम्हारा तुमसे पहले एक बंदा गया होता है, तुम बैठ के ऐसे बस, कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ ली मैंने, इतनी बार हनुमान जी परेशान हो गए होंगे कि बस मैंने सुन लिया है, तू अंदर चला जा। मैं अंदर गया, बात हुई, then when it starts yes, but it's one of the best experience out there. मैं जब वहाँ पर था और जब मैं वहाँ से वापस आया 5-6 days बाद, medical and everything, they were friends who were conference out. दुख होता है, दोस्त बन जाते हैं 5-6 दिन में, बहुत दुख होता है, lifelong चलता है फिर। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो
एक लाइफ को देखने का कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँ, क्लैरिटी आ जाती है ना यार, वो सिर्फ 5 डेज के अंदर। तो आ तुम जाती है। सोचो कि तुम 1 साल के सर्विस के ट्रेनिंग में जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे। Which is there. दिस इज अच्छा, कमिंग बैक, मेरी स्टोरी क्यों कर रहे हैं हम, पॉडकास्ट आपका है, ठीक नहीं तो है। अरे तो इनसाइट्स तो शेयर करने चाहिए श्योर ना। श्योर श्योर, हाँ बट मुझे ना एक चीज जानना है, आई नेवर हर्ड, आई हैव हर्ड ऑफलाइन, बट हैज एवर हैव हैपेंड टू यू कि यू हैव बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग, कि लगे यार अब मर सकते हैं, कभी ऐसा हुआ है इन सर्विस? देखो सो टेक्निकली तो यार देखो लाइफ थ्रेटनिंग तो आजकल कभी भी यू कैन दिल्ली डाई। में रहना लाइफ थ्रेटनिंग है। See, life as such, you know, understand the concept of life and death. The only two things that are certain that they say, na, life, that is you're born and then you are dead. You know? Yeah. So that's basic. Like life and death has happened. And you coming into army, the day you say that, you know, I will protect the nation at the peril of my life, that means you are ready. You should be ready. That is what the point is. क्योंकि आपने कसम खाई है उस दिन, पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात, all field locations and everywhere where you are serving, where one is serving, conditions are bad, conditions are tough, and when people say life death situation, लोग सोचते हैं कि गोली लेके आपको मार रहे, that itself is life death. No, please, first of all, that stereotype needs to get out of everybody's mind. Of course, cross border to wo firing and you know, infantry soldiers and the men, they what they are fighting is a different ballgame altogether. But everyone and anyone who has once come into forge and once they are serving in such inhospitable terrains, I'm telling you, life and death is a matter that can happen anytime. Like for example, I'll tell you a uh, it's a very it's very heart breaking for me because one of my course-mates, he died. You know, he was in Siachen. उनका जो वो शेल्टर होता है उसमें आग लग गई, so he died while trying to save someone, his soldier. So वहाँ कोई क्रॉस फायर नहीं था, आग लगी, उसने किसी और को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी। One of my coursemate, again, he's alive, and God willing, touch wood, I feel he stays alive. When he was de-inducting, he felt a very sharp pain in his heart. And Sorry, when he was de-inducting मतलब अपने पोस्ट से नीचे उतर रहे थे। Okay. Sorry, yeah, when I use jargon तो प्लीज मुझे मुझे समझ नहीं आई थी ये बात। हाँ, मुझे रोक दीजिएगा, बिकॉज कई बार हम लोग आर्मी वाले jargon ही मतलब वर्ड्स वैसे यूज कर लेते हैं। सो जब वो अपने पोस्ट से उतर रहे थे, लाइक जो ऊपर ऊपर पोस्ट होते हैं आपके बॉर्डर्स पे, तो उसमें क्या होता है कि 3 महीने 6 महीने डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड, व्हाट इज़ एंड कि क्या आपकी यूनिट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, कैसे आप वैकेंसी कर रहे हैं, कैसे आपका वो आप उसको चेंज ओवर कर रहे हैं ऑफिसर्स का डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। तो वो अपना वहाँ पे टेन्योर करके नीचे उतर रहे थे। तो जब वो नीचे उतर रहे थे, सो ही उसको बहुत शार्प पेन हुआ हार्ट में, एंड दैट पेन इंक्रीज। अब नाउ जब वो डीइंडक्ट नीचे उतर रहे हैं, अब वहाँ पे तो रुकने का सवाल नहीं पैदा होता है। सो ईदर यू स्टॉप देयर और ईदर यू गो डाउन, एंड हिज मैन सेड साहब चलो थ्रो, एंड वो चलता गया। एंड बाय द टाइम ही रीच्ड नीचे बेस में, ऑफ कोर्स इट वाज अ हार्ट अटैक, बट बिकॉज वो अब नाउ व्हेन यू आर हैविंग एन हार्ट अटैक, दे से कि रेस्ट कर लेना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, वो ऑप्शन नहीं था ना उसके पास। तो हिज हार्ट वाज कॉन्स्टेंटली अंडर वर्क। सो बाय द टाइम ही वाज इवैक्यूएटेड एंड ऑल, his heart is it almost gave up, और आज के डेट में उसकी हार्ट की एफिशिएंसी 30%। Okay. ठीक है, सो इट्स अ नॉर्मल रूटीन प्रोसेस जो फौज का बोलते हैं कि एक ऑफिसर पोस्ट पे चढ़ा, एक ऑफिसर पोस्ट से उतरा। एक मैंने आपको बता दिया जो ये हुआ। This just happened कभी कोई सो व्हेन हाँ, सो क्योंकि आप मुझसे लाइफ और डेथ की बात बोल रहे हैं ना, तो जब आपने ये लाइफ और डेथ वाला बोला, तो मैं इसलिए मैंने ये पॉइंट डालने की कोशिश करी कि मैक्सिमम पीपल टेक इट विद रिस्पेक्ट टू कि मतलब War, जो कुछ तो गोली चली लड़ाई है। चलेगी और वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऐसा है, यस, लड़ाई होगी, गोलियां बारूद चलेंगे, सब कुछ वो उसमें तो वो तो दैट इज नोन, बट जो अननोन वाले कैजुअलिटीज है वो बहुत ज़्यादा है, और हमें वो पता होने चाहिए, क्योंकि And हम that is cause of you serving at very yes, different locations it's with service locations, and because and that is attributable to military service, वो लिखा जाता है उनके उसमें, उनको इसीलिए डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह भी दी जाती है। अगर आपको
बैटल कैजुअलिटी भी बनाया जाता है इसी वजह से, क्योंकि आप फील्ड लोकेशन पे आप सर्व कर रहे हैं और आपके साथ कुछ हुआ है आप सर्विस के दौरान रहते हुए, तो आपको वो बताया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती आज के डेट में, क्योंकि हम जब भी लाइफ और डेथ की बात करते हैं तो हम सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी डे, in case you are not well, or you are in a place which is not well connected, or it is a struggle. अभी now, पहले क्या था, पहले हमारे लाइक ड्यूरिंग कारगिल वॉर से पहले जो हमारे जो टॉप के वो जो हमारे थे पोस्ट वगैरह, इट यूज्ड टू बी विंटर वेकेटेड. Now it's not. There was a time when we left Siachen at the faith of कि वहाँ पे नहीं होगा, but then we came to know no, they are also trying to come there. Now we moved back. तो -50 में एक आदमी रह रहा है, तो लाइफ डेथ तो कभी भी हो सकती है ना. दैट इज वन पार्ट. एवरी मोमेंट इज उनको सर्वाइवल है, सर्वाइवल है. ठीक है. सो पहली बात तो ये. दूसरी बात, जो आप बोल रहे हो खुद का एक्सपीरियंस, तो आई वाज पोस्टेड इन वैली. वैली में, वैली एज इन श्रीनगर, हम लोग श्रीनगर को बिकॉज श्रीनगर वैली बोलते हैं, तो वैली में आगे, बिल्कुल आगे हमारा एक वन ऑफ द लास्ट यूनिट्स है, बॉर्डर यूनिट्स, तो वहाँ पर आई वाज पोस्टेड. उसके भी आगे उसकी एक प्लेटून थी, कंपोजिट प्लेटून, सप्लाई प्लेटून, तो वहाँ पर मैं पोस्टेड थी. 15 किलोमीटर्स पे बॉर्डर था. एंड again, when I said with respect to I having a good senior and good officers who groomed me, I was the first woman officer in that composite platoon. Okay. The commander there was like कि यार तू तो woman officer, infantry officer of course, though he loved me afterwards, that's a different issue of course. तो उन्होंने बोला मेरे सीईओ को फ़ोन करके कि यार तुम वुमेन ऑफिसर भेज रहे हो. बोलता सर मैं तो ऑफिसर भेज रहा हूँ, अब आपको उसके आगे मैन लगाना है वुमेन लगाना है, वो आपके ऊपर है. यू वांट एन ऑफिसर देयर, एन ऑफिसर होना चाहिए. बोलता सर तो आई हैव दिस अवेलेबल, आई एम सेंडिंग. एंड ऑनेस्टली जब मैंने कहा ना कि एक डाउट आता है, उस टाइम पे मुझे अपने आप पे डाउट आया था. मैंने कहा सर मैं कैसे जाऊँगी, कैसे होगा ये वो. तो बोलता जब मेरे को तेरे पे डाउट नहीं है तो व्हाई आर यू डाउटिंग योरसेल्फ. आई एम योर सीईओ, आई एम योर लीडर, you are to follow orders. What I can see from here, you cannot see from here. So believe, go. And trust me, that decision was the best decision of my life. I have met the finest officers. I have met the best two commanders. Both of them are now serving lieutenant generals in the Indian Army. Beautiful. And the doubt the first commander had, all washed away. Because why? Because of my work, because of my performance, because of the fact that I myself never saw myself as a woman there. I was an officer there. और कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, everywhere I was there. कुछ होता था, वर्षा ऐसा होगा, everywhere I was. मतलब कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, कभी चीज़ मैंने ये नहीं बोला सर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. So my professional competence spoke for me as an officer, not my gender. एंड आई वाज एंड वहाँ पे हमारे सिविलियन लेबर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मजदूर जो तो दे कीप ऑन सेइंग कि मैडम हमको तो इतना साल हो गया है, 50 साल, मतलब ही दे आर नाउ ऑलमोस्ट नाउ रीचिंग 50. दे हैव डन अबाउट 20-30 इयर्स ऑफ सर्विस विद इंडियन आर्मी. हमने आज तक यहाँ पे वुमेन ऑफिसर नहीं देखा, महिला नहीं देखी है. तो मैंने कहा कि अब आपने देख लिया है. बोलते नहीं. तो मैंने कहा तो आपको कैसा लग रहा है. बोलते हमारे लिए तो सब अफसर हैं, है ना, आप हम लोग के साहब हैं, आप जैसा आदेश देंगे. सो इसमें भी ये हुआ. नाउ दिस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे मैं थी, जो हेडक्वार्टर था उससे वो 15 किलोमीटर दूर था. सो अब सेकंड लड़ाई ये हुई कि यार उसको बोलो ना रात को आके वो यहाँ पे हेडक्वार्टर में गेस्ट उसका रूम कर देंगे. सो देन आई सेड माय सीईओ सेड नो सर. देन ही इज लाइक नहीं आई विल आस्क द ऑफिसर हरसेल्फ. तो माय सीईओ स्माइल्ड, ही सेड पूछ लो सर, आपको जवाब मिल जाएगा. तो देन AQ वाज देयर, very very good friend, a very very good senior, and I will not name him, but he was from Northeast. So Northeast is a very it has a matriarchal society where women, the concept of women being in warfare and warriors, if you read about the Queen of Manipur, Prince of Manipur, and the Princes of Nagaland, उनके अगर आप सुनोगे what they have done against the Burmese invasions long back, it's phenomenal. So for him तो he was like कि देख वर्षा मैं तेरे से नहीं पूछना चाहता, मैं जानता हूँ तेरा जवाब क्या होगा, बट देन मुझे कमांडर ने पूछा, तो मैंने कहा सर आप कमांडर को ये बता दीजिएगा
Now understand, I am from Army Service Corps. We deal with logistics. Hmm. I had a huge tonnage of oil with me. I had huge tonnage of food items, everything, and I had a particular armory also. Hmm. Requirement jitna tha. I had communication set up with me, and of course the infrastructure. So I said that all that is with me. That is my responsibility as the officer in charge of this composite platoon. So I am leaving everything behind, going and sleeping there for my own personal safety. Hmm. Because मैंने कहा मुझे नहीं डर लग रहा है सर, आपको मेरे लिए डर लग रहा है, और आपके डर की वजह से मैं अपना जवान और साजो सामान नहीं छोड़ूंगी पीछे. अब आई हैव मेड माई पीस विद इट. इट इज़ टाइम फॉर यू टू मेक पीस विद इट. मैंने कहा सर, तो आप, मैंने कहा सर आई एम वेरी जूनियर. कमांडर को तो मैं बोलना चाहूँगी तो बोल सकती हूँ स्पष्ट शब्दों में, बट आई वुड रिक्वेस्ट आप बता दो, बिकॉज इफ यू से इट, it adds weightage to my words. And that is what happened. And I spent 1.5 years there, that location which was 15 kilometers away from the headquarter, and it had its issues. वहाँ पे रात को हमारे को एक इन्फेंट्री, बिकॉज वी वर जस्ट अ प्लेटून स्ट्रेंथ, तो हमारे को एक और सेक्शन स्ट्रेंथ आती थी रात को हमारे रियर एरिया सिक्योरिटी के लिए, एक स्ट्राइक आती थी. अब नाउ the timeline, I will tell you, timeline is somewhere is between 14 to 16. Things were hot in Valley, broiled up. बहुत चीजें हो रही थी. The government changed. 14 to 16. मैं कुछ नहीं बोलने वाली आगे. ठीक है. So lot of infiltration was happening, everything was happening. Internal arrangements were also, मतलब internal environment was also not good, and every second day कर्फ्यू होता था, कुछ ना कुछ होता था. So basic survivability was an issue वहाँ पे. Convoys पे firing हो रही है, कुछ कुछ हो रहा है. There were lot of events and incidents that have happened during that 2 years, and I know it because I was there. So sorry, 14 to 16 बोल रही हूँ, sorry, correction, 12 to 14. Okay. So अब जब ये हुआ, so now Indian Army setup, along the borders is very beautiful. The formations, the divisions, corps, division के बाद corps के बाद command कैसे बनता है, there's a lot of thought process that goes behind it. So if you see, कभी आप Google मैप खोल के देखोगे तो आपके ऐसे ridge lines, contours आपको दिखते हैं पहाड़ के, everything, and at the end सारे mountain ranges they come and they join, कहीं ना कहीं join होते हैं and everything. So every division, every formation, they share a border, like उनका अपना जो वो border, not with respect to like a border, but then area of responsibility. So the beauty of where I was कि जो वहाँ पे एक जो ridge line थी, this side was our area of responsibility of our formation, and that side was the other formation, and that was a very famous route of infiltration, very very famous. And the worst part was वो जो infiltration सीधा हमारे location पे आती थी. Okay. So we were at a little, we were about 1,000 feet height from what the headquarters was, and this ridge line used to come here. And very very famous वो, and उस टाइम पे इतनी ज़्यादा थी, and every second day there was an operation. You could hear what is happening. आप high alert पे हो, आप यूनिफॉर्म में ही हो, सुबह से शाम तक जूते बंधे हुए हैं, ठीक है. बीपीजे आप, मतलब दिन भर तो हम बीपीजे लगा के ही घूम रहे होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट एंड बुलेट बीपीपी बुलेट प्रूफ पटका लेके हम घूम ही रहे होते थे, ठीक है. योर वेपन वॉज इशूड, योर एम्युनिशन वॉज इशूड, इट वॉज विथ यू. ऑब्वियसली एम्युनिशन जो हमारा मैगजीन में होता है वो हम चढ़ाते नहीं थे वेपन पे, बट इट यूज टू बी देयर. वी यूज टू स्लीप तो क्या ही सोओगे आप, सोते ही नहीं थे, मतलब यू कैन नॉट स्लीप ना, कैसे नींद आएगी आपको, नींद नहीं आती थी. You can hear the gunshots, you can hear everything, and especially for the fact that first place that is going to hit is you, not even the headquarters. And the headquarters is 15 kilometers away. Though we did have additional security, during those times, we used to get additional security, QRTs वगैरह, round वगैरह होते थे, हम लोग भी घूमते रहते थे. And रात को एक और प्रॉब्लम था वहाँ पे, because we were just below the reserve forest, तो वहाँ पे जो अलग वो जो तेंदुआ वाला इशू था वो अलग, और भालू वाला इशू. So if in case you are saved by those, they might kill you. So we had to be careful with respect to that also. And animals are very very, उनकी survivability बहुत ज़्यादा होती है. So आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वहाँ पर है. अच्छा. कितने नज़दीक है. They're very
आवाज काम नहीं होती उनकी, तो आपको वो भी देखना है, आपको आवाज भी नहीं करना है, आपको वो भी सुनाई दे रहा है वहां पे वो फायरिंग चल रही है, सो भी नहीं सकते हो. सो इट इज नॉट इजी, बट ऑफ कोर्स द फैक्ट that is what you have signed up for. has any infiltration वो तो हो रहा था वहाँ पे, has anything crossed you? No, they were dead before they could find us, and that is why. Okay, Huh, that's and beautiful. we had the best 2 Paltans with us. I am still in touch with those officers, and success ratio was 100%. And 0% for that, ठीक है. 0% for हमारा, 0% for them. Yeah, 0% for them. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आपने वैली में सर्व किया है, how does Kashmir people look at Indian Army? Is it good or is it थोड़ा रिफ्ट है? क्योंकि आप मतलब गवर्नमेंट कर्फ्यू लगाता है वहाँ पे, आर्मी बहुत ज़्यादा है कश्मीर वैली में, तो कैसा है वहाँ का माहौल जो आपने रियल लाइफ में फील किया है वहाँ पे? बता दूं तो आप और आइस ये ले हो? पॉडकास्ट में जाएगा? नहीं, वी You कैन. decide how. हाँ. चलो मैं बता देती हूँ. Okay, so the thing is, see, understand, 80s में शुरू हुआ, and and especially the major thing that happened was the mass exodus of Kashmiri Pandits that happened, है ना? And we need to understand that Kashmiris as such were very peaceful people, irrespective of the religion. This entire embroilment that actually happened and the entire chaos that happened is foreign intrusion. We need to understand that first. But again, it is human mind, ठीक है? Easily swayed, easily, मतलब एक ही चीज को आप बार बार गलत बोलते रहोगे ना, तो गलत चीज भी सही लगने लगती. एंड एक बार chaos हो जाता है ना, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. And once there is chaos, everybody benefits from it who are in power. Yes. And they will ensure that the Chaos. normalcy never returns. अब when there is chaos, of course, तो क्या होता है कि people in power they get uniform personnel on ground. अब वो जो बंदा वहाँ खड़ा है यूनिफॉर्म में, वो भी अपनी देखो, मरने के लिए तो मैं आया ही हूँ, उसे पता है, लेकिन वो भी तो अपनी जान बचाना चाहता है. He has got a certain training, he has got a certain bent of mind, but जब वो अपनी जान बचाने में, अपनी साथी की जान बचाने में, या कोई आपको टिप मिला है वो उसके ऊपर एक्शन करने में, कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं. एंड उस टाइम पे काफ़ी कुछ चल रहा था, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ गलत ही हुआ है सबके साथ या जो भी हुआ है, बट इवन वन बुलेट और वन डंडा विच वेंट रॉन्ग, जो हम बोलते हैं कि अगर एक डंडा भी गलत पड़ गया या एक बुलेट भी गलत लग गई, तो फिर उसका ना जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना, वो काफी देर तक चलता है. Got it. दैट वो मेंटल इम्प्रिंट जो रह जाता है लोगों में, वो जनरेशन वाइज आता है आगे, जाता है, वो होगा ही होगा. क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है बचपन में, तो आपको बड़े तक यार मेरे को कुत्ते ने काटा है, मेरे को कुत्तों से डर लगता है, बेसिक. नाउ अगर ये किसी के साथ हो जाए और किसी की जान ही चली जाए, कुछ हो जाए, सही गलत की मैं बात नहीं कर रही, मैं एक सिचुएशन की बात कर रही हूँ, तो एक इम्प्रिंट आपके दिमाग में रह जाता है. आप और क्या करती है, जो लोग पावर में होते हैं और दोज हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट केओस, वो उस इम्प्रिंट को ना और गाढ़ा कर देते हैं, उसको हटाने की कोशिश नहीं करते. बट थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स विल चेंज, है ना, फॉर द बेटर. दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम प्रेइंग. एंड देखो, सबको लगता है यार कि मेरा घर है ना, और मैं अपने हिसाब से चलाऊं. अब उस समय में अगर आपके पास इतना ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री ऑर्डर, और मतलब मिलिट्री ऑर्डर मतलब मिलिट्री इज़ अ नेम, मतलब वहाँ पे आपके पास देखो ना, वहाँ सीआरपीएफ वाले भी है, पुलिस भी है, बीएसएफ वाले भी है, इंडियन आर्मी वाले भी, सब हैं, तो मतलब यूनिफॉर्म पर्सनल एवरीबडी, कि आप यहाँ क्यों जा रहे हो, आप वहाँ क्यों चल रहे हो, ये क्या है, कैसे. तो एक बेसिक वो झिकझिकाहट आदमी में आ जाती है कि यार वाई. आपके साथ भी करेंगे तो होगा, आपको भी लगता होगा. कई बार क्या होता है कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट हो जाती है तो सब बंद कर देते, तो हम तो उसी में इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, मतलब 15 मिनट हमको लेट हो गया. Agreed. तो इमेजिन दैट मेंटल मेंटालिटी ऑफ दोज पीपल हु हैव forever been staying in that kind of Get it.
दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट तो है, बट अच्छे लोग हैं. इट्स जस्ट दैट यू नो सराउंडिंग और सिचुएशन ऐसी होगी और लोगों ने फ़ायदा बहुत उठा लिया है. बट अदरवाइज दे आर गुड पीपल, गुड एनवायरनमेंट. आई पर्सनली 2012-14 में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. अभी रिसेंटली माई हस्बैंड वॉज मतलब रिसेंट में माई हस्बैंड व्हेन ही वाज पोस्टेड देयर, मैं वहाँ पे थी. कोई मतलब बहुत बढ़िया. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. मैंने कभी से सुंदर जगह नहीं देखी. मैंने नहीं देखी और इतना सुंदर है. और सुंदर लोग, अच्छा खाना. मीट, अच्छे कबाब. आई एम अ वेजिटेरियन. जस्ट टेलिंग पीपल. कबाब बहुत अच्छे हैं भाई. वी वेंट ऑन अ बाइक राइड देयर. हाँ. तो हम कश्मीर पार करते हुए कारगिल की तरफ से ऊपर जी. लेह तक गए थे. तो श्रीनगर रुके हम. फिर हमने श्रीनगर घूमा, अपना लाल चौक घूमा बाइक्स पे ही. फिर उसके बाद हम ना आगे जो उनके विलेजेस हैं उस तरफ गए. तो ऐसे लगा मैं इंडिया में नहीं हूँ. बहुत सुंदर है. वो ना ऐसे लग रहा स्विट्जरलैंड है कि अनअडल्टरेटेड ब्यूटी. बहुत सुंदर. मतलब एंड मेरा मन नहीं था वहाँ रुक के तुम मैगी खा रहे हो, चाय पी रहे हो. that was one of I think if you are an Indian तो तुम्हें एक बार कश्मीर जाना जरूर बनता है. एंड कश्मीर तो ऑब्वियसली आप जाओगे तो आप बेसिक टूरिस्ट प्लेसेस और वो सब तो घूमोगे ही घूमोगे, बट यू शुड ट्रैक इन कश्मीर. एंड वो लोग नार बोलते हैं. नार इज लेक बेसिकली. तो जो उनके लेक्स हैं, एक तो ग्रेट लेक कश्मीर तो सबने नाम सुना ही होगा. उसके अलावा भी उनके पास ना अलग अलग छोटे छोटे तो नहीं है, देयर बिग लेक्स ओनली, बट वो उनके हिसाब से वो छोटा लेक है. मैं जब वहाँ पहुंची मैंने कहा छोटा है, बोलते हैं चढ़िए ना आ जाओगा 2 किलोमीटर, बट वो टेक्निकली 5 किलोमीटर के ऊपर. एंड यू नो द एल्टीट्यूड इज स्टार्ट ही 11,000 पे होता है वहाँ पे ट्रैक आपका. 11,000 इज सेकंड स्टेज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन. 9,000 पे कर. तो यू नो यू कैन अंडरस्टैंड. तो क्या होता है कि तो आप वो उनके लिए तो नॉर्मल है, बट द ब्यूटी, रॉनेस, unparalleled. that जो कहते हैं ना कलर्स ऑफ नेचर, द साउंड्स एंड द साइटिंग्स ऑफ नेचर जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं. मतलब हम ऐसे 4K अल्ट्रा HD डक 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 वो देखते हैं ना सोनी ब्रावी और ओलेड में, वो एक्चुअली आपको सामने दिखाई देता है. The sky is so blue. And you know best is human eye. We can see 3D. No camera can capture that. That is why there are a lot of filters, software applications को change करने के लिए, है कि नहीं. हम लोग को सामने दिख रहा है. So that experience, I think everybody should go to Kashmir. Yes. See all this. And we should be proud that you know it's in our country. Yes. थोड़ा सा बचा है वो भी ले लेंगे यार. ठीक है. I'm sorry. मैम मुझे एक चीज बताओ, what do you feel of अग्निवीर, एक पॉलिसी जो आई है, what do you feel of it? Is it good for Indian citizens? और यार ये टाइप से एक जुमला है, जैसे दैट व्हाट द अदर पार्टीज आर सेइंग, द क्रिटिसिज्म इज सेइंग कि ये जुमला है, इट डजंट वर्थ इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, टाइम, मनी, एंड किसी को 4 साल का उसका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है तुम्हारा. ओके, सो अभी नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी स्कीम ठीक है गवर्नमेंट निकालती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस स्कीम्स. ओके, बिकॉज डिफेंस एज सच यू नो एक्सपेंडिचर वाइज बोल लीजिए, सर्विस वाइज बोल लीजिए, plays a major role हमारे नेशन में, नेशन बिल्डिंग में ऑल्सो. ठीक है, सो वो ऐसे हवा में नहीं आ जाती. सो देयर बहुत उसके पीछे सोच विचार, घंटों महीनों सालों की, मतलब खूब उसके ऊपर बातें, एनालिस्ट लगे होंगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मेंटल एनालिस्ट सब लगे होंगे और उसके ऊपर बातें हुई होंगी, डिफेंस एनालिस्ट सब बैठे होंगे, उसके बाद एक आया होगा. एंड innovation is something which will come with respect to every passing day in any organization. Agniveer here is also with respect to jawans is an innovation. Okay. Innovation मतलब एक नई पहल. Now understand, ये जो हम नई पहल बोल रहे हैं, और इसको मैं नई पहल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि this is with respect to other ranks. But अगर आप देखोगे अग्निवीर vis-a-vis ऑफिसर्स में तो पहले से है. Short service commission yes. officer. It's like Agniveer yes. of officers. 5 पहले तो 5 years था. Yes. फिर वो 5+5 हुआ. ठीक है, उसके बाद उन्होंने +4 कर दिया. एंड इसमें वुमेन और मेल ऑफिसर्स का कुछ नहीं है, इसमें सबके साथ ऐसे ही है. शॉर्ट सर्विस का टर्म्स ऑफ कंडीशन ही यही थे. एंड देन इट आल्सो गिव्स यू 25% की तुम सेलेक्ट होगे, परमानेंट में जाओगे. परमानेंट में जाओगे नहीं जाओगे. अब वो भी वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि उस साल कितनी वैकेंसी निकली है पीसी के लिए, परमानेंट कमीशन के लिए. सिमिलरली लेटर ऑन
अब ऑब्वियसली जब वो निकला, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बनी, वो हुआ, किसी ने थॉट प्रोसेस निकाला 5+5, फिर 5+5+4 हो गया, later on it became 10+4. I myself am the third or fourth batch third batch in women officers who signed the contractual agreement. We were the third batch, was 10+4. So you need to understand कि कोई भी स्कीम जब आती है उसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस होता है. आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आप उसको नेगेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री सिट टुगेदर एंड कम टुवर्ड्स द स्कीम. पहली बात तो ये हुई. दूसरी बात, कोई भी स्कीम जब आता है, it is always open, if in case the criticism is positive, it is always open to change and improvement. True. हमारे देश में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि हम बह जाते हैं और जानते तो कुछ नहीं है, समझते कुछ नहीं है, कोई खुद से नहीं पढ़ता. हाँ, क्योंकि आज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग चली हुई है, उसके ऊपर से आजकल थिंकर्स, स्पीकर्स, मोटिवेटर्स अलग आ रखे हैं, तो वो अलग अपना एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं. यस, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अग्निवीर. अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल्सो अग्निवीर, कि भाई हमने ये जो डाला ये क्यों है. बिकॉज वी नीड अ वर्क फोर्स, वी नीड अ मैक्सिमम वर्क फोर्स. पहली बात, we need a workforce which is young, and out of that young workforce later on we'll take out the best. ठीक है. and the other schemes that have been given to them, ठीक है, कि आपको post retirement ये, post retirement वो, that all also has been given to them, and including that during service अगर आप कुछ करना चाहते, पढ़ना चाहते, वो भी हम आपको दे देंगे. everything is thought of, everything is given. So we need to understand that this is not a bad scheme, this is actually a good scheme. because एक तो हमारे यहाँ आज के जनरेशन में जिसमें लोगों को लगता है कि भाई मैं नाच लूँगा तो यूट्यूब में टिकटॉक बना लूँगा तो whatever and I'll earn millions, and people are just getting distracted to get them into service as on date, you know, for a short amount of time where we have the young youth workforce. It's a very good deal. नहीं तो everybody is dancing in the parks only and the malls only. हर कोई नाच रहा है आजकल. So it's a very good scheme, first of all, to attract the young workforce. मैंने ये thought नहीं दिया था, but that's a very good thought. It's a very good, and you know, हमारे आज के डेट में हमारे पास battle hardened soldiers हैं. Lot of them are facing health issues also. Everything happens, you know, during the course of time. तो हमें young workforce तो चाहिए ना, कहाँ से आएगा? And when we say that you have to sign a bond, तुम 15 साल पहले 15 साल था, आप 17 साल हो, 17 साल फिर 19, मतलब आप उनका भी रिटायरमेंट एज बढ़ाते जा रहे हो जवानों का. तो जब आप वो बढ़ा रहे हो तो वो बंदा भी सोचता है यार मैं इतने साल के लिए जाऊँ फौज में. But here he's like, okay, let me serve the nation for 4 years. Understand? अब as I said, तो एक तो ये mindset हो गया. दूसरा ये mindset भी है कि because you are increasing the workforce with respect to short service in Jawan also, so you are also there is a economic angle also in this, which also serves the government as in which serves the country. भैया जो भी पैसा बचेगा वो देश में ही लगेगा ना, कहाँ लगेगा? अब जो लोग पूछते हैं ऐसे, लाइक आई हर्ड सो मेनी पीपल सेइंग इतना पैसा बचा के सरकार कहाँ जाएगी. सरकार कहीं नहीं जा रही, सरकार यहीं है. सरकार इज नॉट गोइंग एनीवेयर. इट इज हियर, द मनी इज ऑल्सो हियर, एंड द मनी विल स्टे हियर, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर आवर ओन बेनिफिट्स. तो बहुत सारे एंगल्स है और हमें ये समझने की जरूरत है, पहली बात तो. अब नेक्स्ट एंगल ये है कि एज आई सेड दैट एवरी स्कीम नीड्स टू बी रिव्यूड, और जब वो रिव्यू होता है तो उसके बाद इट इज ओपन टू चेंज एंड इम्प्रूवमेंट. Recently, our Chief General Dwivedi, he said that you know we are looking into Agniveer का जो स्कीम है उसमें एक कुछ पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, हम देख रहे हैं, and most probably there will be some changes which will be coming in, and it is open for discussion and it is open for change. He said it recently. And it is because now what happened is जब ये अग्निवीर का स्कीम बना, and my father, he was the district secretary Zilla Sainik Board in Darjeeling post his retirement. There are about 10 lakh plus retired service personnel in Darjeeling district. So he keeps on going interacting, he keeps on taking a lot of workshops and lot of seminars. तो उन्होंने he tried to gather कि क्या है, what are the changes and everything. और जब हम बैठे, हमने एक अपना, हम लोग ने अपना think tank session किया. So see, and finally these recommendations have gone to the government ना, कि आपको किसी को भी like for example this 4 years service, of course the point is आपका 1 साल का ट्रेनिंग है, उसके बाद टेक्निकली आपके पास 3 ही साल बचे उसके बाद सर्विस के. 3 साल के सर्विस में भी लास्ट ईयर ऑफ सर्विस ही विल बी बिजी
you know, trying to get, तो उसका effective period of service is only 2 years. So is it worth putting that much effort into one Agniveer? So the recommendation now that a lot of people have actually given is increase it to 7 years. Okay. Okay, so 1 year of training, 1 year of last year you remove him. So basically he has 5 5 years of effective years to give to you. Now the basic जो आपका जो ये आती है आपकी इस एज जिसमें ये रिक्रूट होता है, तो 18 साल के बाद कभी भी रिक्रूट होता है. अगर 18 साल रिक्रूट करके आप 7 साल लगा दो, 26 साल 26 साल में जब वो निकलता है, एंड गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें कोई एज लिमिट थोड़ी होती. कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है जहाँ पे 42 ईयर्स इज ऑल्सो द एज लिमिट. तो वो जाके ही कैन अप्लाई. And why it is said that put it as 7 years? Because when you put it as 7 years, you are eligible for gratuity. First of all, financial benefit that is there. देखो आप अपना तो सेव कर रहे हो एज अ गवर्नमेंट, बट थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना सिटीजन को. सो ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी. नेक्स्ट ही और शी, बिकॉज अब तो हमारी वुमेन फोर्सेस भी हैं सीएमपी में, सो दे आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी. देन ऑल्सो दे गेट द एक्स सर्विसमैन का टैग, which right now they because of 4 years they are not getting. Yes, they are getting you know, promised services and promised you can appointments in their state services जो बताया गया है और सबका, but that is only in group D. But if you get that ex serviceman wala tag with you, which is with you, you can apply anywhere higher. You get open doors. काफी जगह से आपको recommendation मिल जाती है. He can become an IAS for all matters sake. So this scheme is not bad. It is a very well thought scheme, both for the army and both for the government and for the citizens also who want to serve, but they don't want that entire, you know, that कि यार मैं 15 साल सर्व करूँ, 17 साल करूँ, क्यों करूँ. मतलब he wants to serve the nation, but you know उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बंध जाऊँगा. होता है कहीं, अंडरस्टैंड, सबकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत चीज़ होती है और चीज़ें चेंज भी हो जाती है ना. अब बच्चा 18 साल में आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है. ही हैज़ दैट इंडिपेंडेंस टू चेंज. परफॉर्म अच्छा करो. 7 साल के बाद अगर आपको परमानेंट होना है तो उसमें से तो वो ले ही रहे हैं परमानेंट, बेस्ट को वो ले ही रहे हैं. आप बेस्ट करिए ताकि आपके पास ऑप्शन है कि आप आगे जा सके. अगर आपको नहीं है तो आप छोड़ दीजिए. यस, और उसके बाद आप अपना इतना अपने आप को अपस्किल करिए. उस 7 साल में आपने जॉब भी करी, आपको एक सर्विसमैन का वो भी कोटा भी मिल गया है, एंड देन यू आर लीविंग. तो यू नो यू आर, आपको बेस्ट चीज़ें सीखने को मिल रही है फौज में. जैसे कि यू नो आपने वो एसएसबी वाला कहा था कि 5 दिन में आपकी इतनी क्लैरिटी आ जाती है, तो 7 साल में आपको एज अ जवान ऑल्सो कितनी क्लैरिटी आएगी बताइए. मैंने इसके ऊपर एक थॉट और देता हूँ. जस्ट टेल मी वेदर यू एग्री टू दिस और नॉट. जैसे साउथ कोरिया में है, इजराइल में है कि इट इज़ मैंडेट टू सर्व नेशन फॉर 3 years 5 years, ऐसा है. डू यू थिंक इंडिया में ऐसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से दिस इज कॉज वाई एम पुटिंग दिस अप इज नंबर 1 सिविक सेंस, डिसिप्लिन. क्योंकि तुम मान के एक आदमी बन जाते हो यार. तो नॉट टर्म ऑफ मेन विमेन, नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. ऐसे यू बिकम अ ह्यूमन. तुम्हें समझ आता है कि कैसे वर्क करना है, क्या और एक सिविलाइज रहना है. तो आई थिंक हर बंदा अगर सर्व करेगा तो वो एक सर्वेनिटी, थोड़ा नेशनलिस्ट सोच वो अंदर डेवलप होगा. What is your view कि ऐसा होना चाहिए? I absolutely in term with you and I absolutely agree with you, होना चाहिए. And क्योंकि ना आपको जो, and it's not only about civic sense और ये, but एक basic देखो जो चीज़ें होती हैं ना, एक leadership, discipline, resilience, adaptability, जो आपको ट्रेनिंग सिखाती है वो आपको कोई कहीं नहीं सिखा. जो मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाती है, नॉट ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, वो आपको कोई नहीं सिखा सकती. कोई मतलब नो सर्विस कैन टीच यू, नो प्रोफेशन कैन टीच यू. तो होना चाहिए, बट हमारे देश में कितना पॉसिबल है, यू नो, बिकॉज ऑफ द क्वांटम ऑफ पीपल. मतलब एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इतने सारे लोगों को ट्रेन करना, इज इट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव टू सी. सेकेंड ऑफ ऑल, we are a very diverse nation and we are a democratic nation first of all. So जब वो diverse और democratic आ जाता है तो you have your independent thoughts. तो to say that कि तुम यही करोगे वो possible नहीं है. Freedom of expression, constitutional rights छिड़ रहे हैं यहाँ पे. वही बात है. तो एक तो population और दूसरा because we are a diverse democratic country, even if we cap at that population और हम कुछ निकाल लेते हैं, क्या वो possible है? Then that is an answer every one of us knows.
बट यस अगर ऐसा हो सकता है तो नथिंग इज बेटर देन दिस, बिकॉज वो जो एक थॉट आती है ना जब आप उस एक बार वो आपने वर्दी पहनी होती है वो कभी नहीं जाएगी। वो एक जो आपके अंदर एक जो भावना देशभक्ति की जो भावना होती है इट विल रिमेन विथ यू। एंड फिर वो वैसे नहीं होगा जो आजकल सोशल मीडिया के लिए होता है कि अब वो 15 ना अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा उड़ा के और वॉर हीरोज की फोटो डाल देते हैं और उसके बाद बाकी गायब। बाकी 363 डेज दे आर फॉरगेट इट, भूल जाओ। बट दैट्स द ट्रुथ। मुझे जब आपने वर्दी बोला ना तो एक वो नहीं आता कि जब तुम वर्दी पहनते हो तो खुद शरीर ऐसे खड़ा होता है, बिल्कुल तुम्हारी रूह खड़ी होती है। आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। लोग बोलते हैं कि ड्रिल क्यों कराते हैं, मैंने कहा ड्रिल से कराते हैं क्योंकि बंदा खड़ा कैसे हो सकता है हाउ और वाज कैसे। योर फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आपने वर्दी पहनी थी, जिस दिन पहले दिन पहनते हैं ना, और कौन सी मतलब कैडेट जब वाली या नहीं जब आप कमीशन हुए थे, दैट इज डिफरेंट। कैडेट के बाद कैडेट इज आल्सो गुड, वो अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन जब तुम वो मेहनत करते हो ना साल, इट इज रगड़ा मारते हो अपने शरीर का, मतलब कैसे did एक्सप्रेस you करो। did you did the tears roll down? Yeah, I cried. It was momentary. You have to control yourself. I didn't cry like when I was wearing the uniform. It was this moment when that stars हो गए, सब कुछ हो गया. Dad was there. Dad was still serving that time. My mother was there. My sister was there. तो एक वो होता ना जब सब कुछ हो गया, वो पूरा प्रोसेस हो गया, तारे वारे निकल गए, and then you're like, oh, I'm an officer now, and my father is here, my mother is here, and you're like, oh, then I say, it's more than the tears. It's like that goosebumps, and that in that moment, that emotion just flows down. Maybe in terms of tears, but then it does. It does. Tears are not weakness. Those It's are not like weakness. it's a strength. But I think है ये थोड़ा लोगों को लगता है. But I'm just saying, that goosebumps, वो emotion पूरा ऐसे वो chemical लोचा होके brain से फिर वो it came out, comes down as tears. And that moment, yes, that was there. Yes, it's recorded also. Can you share that to us? I can send it to you. है मेरे पास वो video. I wish we can add this up maybe. And when you talk about that, na, I can see little numb in your eyes. Yeah, that moment, that is once in a lifetime. ना दोबारा तो नहीं होगा, दोबारा कमीशन नहीं होंगे, दोबारा तारे नहीं लगेंगे. तारे तो एक ही बार लगते हैं. आप प्रमोट होते हो, बट तारे आपको एक बार लगते हैं. So yeah. Good. ठीक है. अच्छा, मैं ये ना मेरी मतलब हम बैठ के जब कुछ रिसर्च कर रहे थे बिफोर दिस पॉडकास्ट हैपेंड, तो वी केम अप विद अ वेरी वेरी वेग थिंग. ठीक है, दिस इज समथिंग आई नेवर हर्ड. एंड एज अभी क्या हो रहा है, नेम्स चेंज हो रहे हैं, हम रिवाइटलाइज कर रहे हैं चीज़ें, औरंगजेब को अपनी ज़िंदगी से हटा रहे हैं, इसे बुक्स में रखना चाहते हैं. आई एग्री टू इट. पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, यू कैन कमेंट डाउन. बट औरंगजेब रोड को हमने APJ अब्दुल कलाम कर दिया. वी आर एक्चुअली रेजिंग द पीपल हु ruled us ruthlessly. That's what I said ना, मैं जब जनरल मानेकशॉ के बारे में, see, you have to be a good leader, and along with a good leader, you have to be a good human. Then people celebrate you post you're gone. आपके beliefs होंगे, and this is not a matter of religion. I want to clear मतलब what people think कि religion नहीं. अगर आप किसी भी religion के हो, लेकिन अगर आपने जैसे आपने कहा brutality, ruthless atrocities की है, then there is no point to remember you. Because if religion be the issue, then it should not. Then APJ Abdul Kalam भी नहीं आते. But लोग उसको religion का नाम दे रहे हैं, but वो ऐसा नहीं है. नहीं है. Okay, so एक ये मिला है the father of Indian Army. I was very surprised reading this. Father of Indian Army. Yes, it's Major General Stringer Lawrence. एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने सर्व किया फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फोर्ट विलियम फ्रॉम 1748 to 54. तो मैंने कहा, तो जैसे है ना कि ब्रिटेन एक कंट्री है, उन्होंने अपना आगे लगा ली द ग्रेट ब्रिटेन, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा द ग्रेट ब्रिटेन. जैसे मेरे सोसाइटी में अग्रवाल हैं, गुप्ता हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे जी लिखवा लिया, तो अग्रवाल जी, गुप्ता जी. तो दिस इज हाउ द ब्रिटिश और अदर सोसाइटीज हैव वर्कड. आई वाज क्यूरियस, दिस इज रियलिटी. Why are you laughing? That G can G लगा दिया. हाँ, आपने गाड़ियों के पीछे नहीं पढ़ा. Like JIG. No, G, हाँ JI या फिर G लिख देंगे. Imagine there is a word called Gupta /G, or maybe I'll take my name, Kohli G. So how would you read it? How would you read it? G. So you're giving me respect. Okay. Smart way of earning respect. Right? That's the reason they say the Great Britain. And there is nothing great about it. It's fucking they say, I don't say. हाँ, it's fucking grey. Over 12 months तुम depressed हो रहे हो वहाँ पर, और बहुत गंदा है वहाँ पे. ठीक है, but people love it. So what do you think? Is the name Major General Stringer Lawrence? मतलब I don't want to boast about myself, but मेरी upbringing ऐसी हुई है, और
अपब्रिंगिंग के बाद मैंने कंटिन्यू किया था. आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी वेल रेड पर्सन. ठीक है. एंड बी I have not heard this. ठीक है. And I have not heard this. And अगर इफ इन केस जैसे ग्रेट ब्रिटेन ने अपने आगे ग्रेट लगा के वो कोशिश किया है, ऑफ कोर्स सी द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी हैपेंड ड्यूरिंग ब्रिटिश आर्मी. ऑफ कोर्स उससे पहले हमारे अपने अपने आर्मीज थे, अपने अपने अलग प्रिंसली स्टेट्स के थे. दे बॉट अस टुगेदर. सो ऑफ कोर्स उन्होंने हमें एक करके उन्होंने एक इंडियन आर्मी बना दी. यस, the conceptualization happened of Indian army during that time, but that does not give them the right to call themselves father of the Indian army. मतलब जैसे उन्होंने आपने बोला ना, उन्होंने अपने आगे ग्रेट लगा दिया है, और ग्रेट तो कुछ पता नहीं है या नहीं है. Similarly, just because he was the first officer to land or something like that, and that's why he's the father of Indian army, and he created the first cantonment or whatever, you know, you just read out. No, sorry, मतलब, and I have not read it, and टेक्निकली मुझे कुछ नहीं पता होता तो मुझे लगता है कि अरे मुझे क्यों नहीं पता था. अब मुझे बट ये सुन के मुझे लग रहा है इट्स ओके, मुझे नहीं पता था. I mean, I have not lost anything because I don't believe in this. But if you sorry, if you had to replace, I mean, मुझे नहीं पता कौन है ये आदमी, ठीक है. I'll be, और मैं हिस्ट्री में, and he served just. And you are also a very well read person, you know, because my interaction with you, I can understand that. He just, I mean, in that area 6 years, सिर्फ 6 साल. ठीक है. हमारा अग्निवीर 7 साल जा रहा है अब. ठीक है. हाँ, मतलब अगर वो रिकमेंडेशन क्लियर हो गई तो ठीक है. बट इफ something has to change and something has to be given as a father of Indian army, do you think is it a suitable title to proceed further? No, it is not, because we consider ourselves as a family, an organization. हमारे हम लोग इसको एक परिवार की तरह लेते हैं, और परिवार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता. और जब आप ऐसे एक टाइटल देते हो ना, फादर मदर या मतलब बॉस या वो, then there is a demarcation, and हम वो demarcation तो हम करते ही नहीं है. वो concept ही नहीं है. It is a soldier. Rank structure is there, of course. Rank structure and hierarchy हर जगह होती है, because होनी भी चाहिए. the orders have to follow. It has to percolate down the chain. But that demarcation does not come with respect to the mind and the feeling, ना. जहाँ हम बोलते हैं brotherhood, camaraderie. If in case you give something like this, then where does that brotherhood and camaraderie go? And किसको दूँ मैं? कितने legends हैं Indian Army के? कितने heroes हैं? Who will if I give one person the title of father of Indian Army, am I not demeaning the sacrifices and the services of every soldier who has served or is still serving and will continue to serve, and those who are coming ahead? ठीक है. तो that's my feeling. No, किसी और को देना है तो शायद वो दे सकते हैं. While we were researching, मैं थोड़ा सा इसमें. It's okay, I don't know it. I'm happy I don't know it. Yeah, I wish I could erase my memory for this. ठीक है. तो हम ना रिसर्च कर रहे थे, and we were looking at the budget increase in the Indian Army, not Army defense, whole defense. मतलब जिसमें Air Force, Navy, Army आ रही है, DRDO आ रहा है, रिसर्च आ रहा है पूरा. तो I wish I could show you this chart. हमने लास्ट ईयर देखा 9.5% increase. Are we preparing for something big happening? Do you have any insight? Preparing big with respect to anything. Why we are increasing so much budget? You have to see, because हम सोच रहे हैं डिफेंस बजट, हम आइसोलेशन में सोच रहे हैं कि मिलिट्री as such है ना, but देखो, this defense budget increase what we are talking about, it is not an isolation, because lot of factors are roaming around. Factors as in आपके emerging threats vis-a-vis our country, ठीक है, your geopolitical scenario, ठीक है, the world order that is going right now, ठीक है, and मतलब everything, and the concept of modernization which is happening in so many terms and in so many fields. चाहे आप AI बोल लो, quantum technique बोल लो, कुछ भी बोल लो. So there's so many things that are happening around. So इन सबको जब आप लेते हो और सोचते हो, तो जब आप उसके ऊपर बैठ रहे हो, तो इसीलिए हमें ये ज़रूरी है ये. And that does not only mean that increase with respect to, you're talking about the defense budget, does not necessarily mean only equipment. Only modernization with respect to equipment. It is not only that. It is with respect to your applications. It is with respect to your infrastructure. It is with respect to your day-to-day something as day-to-day variables. Like for example, सियाचिन में एक बंदा बैठा, एक टाइम था उसके पास बूट नहीं होते थे, आज के बाद उसके पास बूट देखिए. The entire thing that they are wearing is worth lakhs.
one soldier that he wears. एक टाइम पे कपड़े नहीं होते थे उनके पास, कपड़े नहीं मतलब नॉर्मल कपड़े, normal कपड़े, warm मतलब the कपड़े winter wear was, we didn't know. And look, one wearable that a soldier in Siachen today has is worth lakhs. So when people say 9.5, so you know, you're like, are we preparing something big? हम क्या gun लेके आ रहे हैं ये वो? Of course, we are modernizing and we are increasing with respect to our equipments and weaponry. But in that weaponry, we have a lot of equipments, we have accessories, we have infrastructure development. Everything is there. एंड मैंने ना एक चीज देखी है, जब से द करंट गवर्नमेंट वी आर इन दिस थर्ड टेन्योर ऑफ बीजेपी हियर, डू यू थिंक दे आर मोर inclined toward securing or maybe pushing defense or giving them a free hand as have you Free hand as in like, what do you mean by free taking hand? decisions or maybe so when I say free hand it means मैं उनको टेबल पे इनवाइट कर रहा हूँ and I'm listening to them very carefully. और पहले क्या होता था कि मुझे नहीं पता पहले क्या होता था, this is my assumption, ठीक है, correct me if I'm going wrong. It should be, it was a top down approach, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अगर कुछ हो रहा है तो then there is a consultation. But right now it's a group, it's a brainstorm session, it's a think tank जहाँ पे तुम बैठते हो पूछते हो, क्योंकि those guys know what it is happening, we do not know, we just have a budget, तो हम दे देंगे उस चीज़ को. Do you think the current government is more aligned? हाँ, फ्री हैंड आई वुड नॉट कॉल इट फ्री हैंड, थोड़ा वैसे बड़ा लूज वर्ड है, हाँ, नेगेटिव लूज की वर्ड है तरफ वो भी थोड़ा, जा सकता है, यू नो दैट, बिकॉज फ्री हैंड तो हमारे कंट्री में हो ही नहीं सकता, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, बिकॉज दैट मीन्स बेसिकली टेक डिक्शनरी मीनिंग इज यू आर giving the autonomous powers that can not happen in a dictatorship also technically as on date. So but alignment, yes, towards for the fact that as I said, you know, modernization, defense reforms, the rise of talks with respect to what is happening. See, as on date, India is at a very strategic you know, crossroad, you know, where everything is happening. Technological development, sustainability के ऊपर talks हो रहा है, reforms के ऊपर, not only defense, social reforms, political reforms, everything. And it's beautiful strategic crossroads that we are, and I feel that I'm so blessed to, you know, to witness all this. तो जब आप ये सब देख रहे हो, और ये सब क्यों पॉसिबल है, बिकॉज सी, जो बंदा सबसे ऊपर बैठा है, educated is not the term, he or she is knowledgeable, he or she is acceptable to the fact that there is change, there is learning. मुझे नहीं पता, इसको पता है, आप बैठो, आप मुझे बताओ, मेरे को एक आइडिया है कि मैंने ये चेंज करना है एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ हेड ऑफ अ स्टेट, आई नो कि मुझे ये चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लेके आना है, बट ही इज़ टेकिंग दैट आइडिया कि क्या हमको ये चाहिए, ये हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा. एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट कि वो कुछ सामान लेके आना है, दे आर ऑल्सो असेसिंग द entire world scenario. Like for example, if in case you remember Azerbaijan Armenia war, I read about it, मतलब ऐसे 40 दिन में वो वॉर खत्म हो गया, ठीक है. अजरबैजान ने ब्यूटीफुल ड्रोन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, ठीक है, आप कामिकाजे बोल लीजिए, बख्तियार बोल लीजिए, ऑल राइट, दे टुक ओवर दैट एंड इन 40 days the war came to an end. So when you see that, then you are like, so the person, I'm just giving an example, the person sitting at top, उसने देखा ये, देखा, इसको नोट किया, पूछा, and as on date, you know, Indian Army, the way we are working towards the drone technology, about adapting it, about learning about it and using it. Yes. अब उसके बाद फिर then Ukraine war happened, उसके बाद the Gaza conflict and everything happened. So that also they are seeing, the modernization warfare वाला जो हुआ Azerbaijan का, that also they are seeing. So they are seeing every point and they are assessing it, and they are not taking decision just like that. They are asking the persons who are responsible for it and the persons who have the knowledge, and उसके साथ उसको बिठाते हैं, उसके साथ किसी और को भी बिठाएंगे कि आप भी बताओ. For example, you said DRDO. Recently I attended a technical summit in which there is something called as DRDO का technology fund which has come in, which I was not aware of. And the officer who came from DRDO, the scientist, he said that he came to Delhi in 2014. He said कि जो मैंने पिछले 10 साल में चेंज देखा है,
एक समय ऐसा था जब हम बोलते थे आइए बैठिए, शायद हम सुनेंगे भी नहीं। आज की डेट में हम आपको सुनते हैं, हम आपको चाय भी पिलाते हैं, बिस्कुट भी खिलाते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया यू विल गेट द फंड्स, यू विल गेट इट मेड एंड वील प्रिपेयर इट। एंड टू इंश्योर, अब सामान चीज़ें बनने के बाद नहीं होती ना, वो बिकना भी चाहिए। तो वो बोलते हैं हम अगर वो सामान हमने आज के डेट में बनाया है, we'll ensure there's an import embargo and what we have made sells, technically what you have made. So आप बताइए आज जो Dare to Dream प्रोजेक्ट से कर रहे हैं, Dare to Dream अभी now it's in the version 5, there are in that Dare to Dream they have had such beautiful innovations, उन्होंने वो लिया है और आज के डेट में हम वो बना रहे हैं. I'm forgetting the term, there's a technological term, it is used in ships. It's sort of a piston. We are the only 3 countries in the world make it, and we are the 3rd country. And आज के डेट पे उस चीज के ऊपर import embargo लगा दिया गवर्नमेंट ने. So That's when you say the concept of aligning with the thoughts, they are ready and they are working towards it. We are working towards it. Not only the leaders. Leaders have bought everybody. They are talking to the experts. They are talking to the panelists, the analysts, and they are taking that ideas, and we are working towards it. And I'm not just talking out of kuch pad liya. I'm talking because I have met people, and this is just one of the person I'm talking to you about. One facility DRDO. There are many that I've talked to and spoken to. खत्म हो जाएगा podcast में, finish नहीं कर पाऊंगी. So yes, they are in alignment and they are working towards it, and मतलब towards a better future ahead with respect to military. Not only military as in like weaponry, in an holistic approach. In the day-to-day things as well. Everything. Okay, with that thought, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ ये podcast बहुत अच्छे के लिए हुआ. What do you think of this, guys? Let us know in the comment section. We're gonna leave a link in the description box to Lieutenant Colonel Barsha's Instagram. If you have any questions, you can DM her. और हमसे chat में आप बात कर सकते हैं नीचे comment section में. Do not forget to subscribe the channel. This is a pod with Nick. मेरा नाम है निखिल. I had Colonel Barsha with me, and we're gonna see you in the next. We're gonna see you in the next series. See you.